Dear students and viewers, today I have the pleasure to discuss the MCQs of three important chapters. These are the chapters which we'll be discussing today. First is reproduction in angiosperms. Around top 30 MCQs I have selected that will be discussed here. Then second is ecology. Around 20 top questions on this unit will be described shortly. And then a small chapter, microbes in human welfare. Around top 10 questions are there that I have selected, and these 10 questions will also be described. Okay, so let's get started. First we'll be discussing reproduction in angiosperms, the MCQs related to reproduction in angiosperms. Around 30 MCQs are there. Let's get started. So here is the question number 1. It's a statement based question. Such types of questions have been recently asked in the entrance examinations. That's why I have designed a question like this. Question 1 is statement first and statement second. Statement first says apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. You know, apomixis, indeed, it is a mode of asexual reproduction in which there is formation of seed, but seed formation does not involve fertilization, the process of syngamy. Okay, apomixis is a form of asexual reproduction. Yes, it is, that mimics sexual reproduction. Mimics means it copies, it resembles sexual reproduction in the sense that in both these processes, whether it is apomixis or sexual reproduction, final product in both the processes is the seed. You know, seed is the final product of sexual reproduction. But asexual reproduction can also lead to formation of seed, but this seed is produced without involving fertilization or syngamy. That production of seed wherein fertilization or syngamy does not occur is what we call as apomixis. So we can say apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. That's true statement. Then statement second says in apomixis there is formation of seed without fertilization. जो मैंने बोला मैंने सेम स्टेटमेंट यहाँ पे उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है. क्या आपको लग रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट सही है? यस इंडीड, बिकॉज एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा प्रोडक्ट मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट. दैट्स व्हाट वी कॉल ए सीड, मींस इट मिमिक्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है? इन एपोमिक्सिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट or bypassing process of fertilization. Both statement first and statement second are correct. तो यहाँ पे both statement first and statement second are correct. फिर से मैं बोलूँगा थोड़ा इसके बारे में. Final product of sexual reproduction is seed, but seed formation can also take place through asexual reproduction. That production of seed through asexual method wherein process of fertilization does not take place is what we call as apomixis. In that way, we can say apomixis mimics the process of sexual reproduction, as both the process of sexual reproduction as well as apomixis finally lead to formation of seed. So we can say this statement is correct. And apomixis involves seed formation but does not involve fertilization or syngamy. Yes, both statement first and statement second are correct. It's important one. चलिए आगे बढ़ेंगे. Then here is the second question. Which one is incorrect about pollination? Pollination के बारे में कौन सा चीज इनकरेक्ट है, इसका ख्याल रखिएगा. आपको इनकरेक्ट देखना है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पॉलिनेशन के लिए कौन सा इसमें? Most angiosperms undergo pollination at 2 cell stage. नहीं, ये गलत है. Because we know majority of angiosperms, greater than 60% angiosperms perform pollination at 2 cell stage. ये सही था. 2 cell stage में होता है around 60% angiosperms है, but 40% angiosperms
around 40% angiosperms perform pollination at 3 cell stage. Go ये लिखना most angiosperms undergo pollination at 2 cell stage, ये सही है because most means majority here. तो majority में 60% आ जाएंगे, ये स्टेटमेंट सही है. तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं आ जाएगा, आपको देखा इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गो ये वाला करेक्ट है, तो ये फिलहाल इसमें नहीं आ जाएगा, इसका आंसर नहीं आ जाएगा. Second, nature favors cross pollination. Yes, you know, majority of angiosperms in the world, they produce bisexual flowers, and when there is bisexual flower, probability self pollination की या autogamy की बढ़ जाती है. But majority of angiosperms instead, they produce, majority of angiosperms produce bisexual flowers, but they prefer to undergo cross pollination because cross pollination leads to variations, and variations act as a raw material for evolution to operate. So we can say nature favors cross pollination. ये statement भी सही है, तो ये भी इसका नहीं आ जाएगा सही आंसर, बिकॉज आपको इनकरेक्ट वाला ढूंढना है. देन थर्ड इज इन वेलिस्नेरिया, instead of pollen grain, whole male flower transfers during pollination. You know, during the act of pollination, transfer of pollen grain takes place from anther to stigma normally. But Wellisneria, what's otherwise called eelgrass, this is an angiosperm, aquatic angiosperm. इसमें क्या होता है, इस Wellisneria में ट्रांसफर पॉलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन नहीं, पूरा मेल फ्लावर ही ट्रांसफर हो जाता है पॉलिनेशन के दौरान. गो इन वेलिस्नेरिया इंस्टेड ऑफ पोलन ग्रेन होल मेल फ्लावर गेट्स ट्रांसफर ड्यूरिंग पॉलिनेशन, ये सही ऑप्शन है. तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ये भी इसका नहीं आ जाएगा बिकॉज तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ऊपर वाले, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट में से ढूंढना है. तो फोर्थ ऑप्शन जो है, जिम्नोस्पर्म्स आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स. No, this is wrong. Basically, all angiosperms, almost all angiosperms are wind pollinated. They show anemophily, pollination by wind, not by insects. So, इसका ऑप्शन आ जाएगा D वाला, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है. ये वाला इसका आ जाएगा सही. ओके, इनमें से आपको इनकरेक्ट वाला ढूंढना है. इट इज द ऑप्शन D, दैट इज द इनकरेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे. The genetically controlled outbreeding device is, outbreeding means cross pollination, otherwise inbreeding means self pollination. तो कौन सी इसमें डिवाइस है, कौन सा ऐसा तरीका है जो जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है आउटब्रीडिंग के लिए, मतलब को एक प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर कर रहा है. देयर आर नंबर ऑफ वेज थ्रू विच ए प्लांट कैन अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन. जैसे आपने पढ़ा होगा प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. जब प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए, दूसरे प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो अल्टीमेटली देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. या मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट टाइम में होगा मच्योर, व्हाट यू कॉल एज डाइकोगेमी, तो वो भी एक तरीका है. या हर्कोगेमी, देयर विल बी ए मैकेनिकल बैरियर. नंबर ऑफ डिवाइसेस आर देयर व्हिच आर एबल टू समहाउ ये किसी तरीके से रोकते हैं, they are able to stop the act of cross pollination, self pollination, and plant is just favored to undergo the act of cross pollination. तो आपको यहां पे देखना है जेनेटिकली कंट्रोल्ड कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइस है. आप देखेंगे डाइकोगेमी में सिर्फ मैच्योरिटी होती है अलग अलग वक्तों पे, तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड नहीं है. हर्कोगेमी में क्या होता है, इसमें मैकेनिकल बैरियर आ जाएगा इसमें एंथर और स्टिग्मा के बीच. यहां हेटेरोस्टाइली, यहां पे लेंथ स्टाइल की आधे फ्लावर में लॉन्ग होगी, आधे फ्लावर में शॉर्ट होगी, वो यहां पे लेंथ ही डिटरमाइन करते हैं. एनीवे, सेल्फ स्टीरिलिटी अदरवाइज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टीरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज a genetically controlled outbreeding device. इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक फ्लावर बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, नीचे वाला पार्ट फ्लावर का होता है पेडिसल, ऊपर वाला पार्ट होता है पेडिसल का सोन, वी कॉल थैलेमस, टोरस और रिसेप्टेकल. इसमें 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं. कैलेकस मेड ऑफ सेपल्स, कोरोला मेड ऑफ पेटल्स, इसके बाद एंड्रोशियम मेड ऑफ स्टेमेन्स एंड गाइनोशियम मेड ऑफ कार्पल्स और पिस्टल्स. फ्लावर है.
नॉर्मली क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। एंथर से जब पोलन ग्रेन निकलेगा और ये स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा, शाबाश, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही हो जाएगी, वी कॉल इट ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन का एक तरीका है वो। तो जब अपना पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा के ऊपर नहीं हो जाएगा जर्मिनेट, नहीं करेगा ग्रो, नहीं बना पाएगा पोलन ट्यूब, नहीं कर पाएगा फर्टिलाइजेशन ओव्यूल की, तो इस सूरत में हम बोलते हैं देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस एंड one of the reason is self sterility. It can be genetic self incompatibility or gametophytic or sporophytic. तो यहाँ पे पोलन ग्रेन अपने फ्लावर का अपने स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट न होना, this is what we call as self sterility or self incompatibility. This self sterility or self incompatibility is a genetically controlled outbreeding device. तो इस वाले ऑप्शन, ये क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाएगा सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज एन आउटब्रीडिंग जेनेटिकली कंट्रोल आउटब्रीडिंग डिवाइस। क्वेश्चन 4, पोलन ग्रेन्स आर लाइट, लाइट यहां पे थोड़ा हल्का है, डस्टी मीन स्मॉल साइज में, स्टिग्मा इज हियरी, स्टिग्मा पे हियर से प्लूमोस स्टिग्मा है जिसको फेदरे हम बोल सकते हैं, फेदर लाइक, विद सिंगल ओव्यूल पर ओवरी। ये सारे कैरेक्टर किन वाले फ्लावर्स में पाए जाते हैं, किन वाले प्लांट्स में पाए जाते हैं? जब पोलन ग्रेन होगा लाइट हल्का सा, डस्टी होगा स्मॉल होगा, स्टिग्मा होगा हियरी और पुलिमोस और यू कैन से फेदरी, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो द प्लांट मस्ट बी, ये वाला प्लांट किस तरीके से, किस एजेंट से पॉलिनेट हो जाएगा? डेफिनेटली इट विल बी विंड पॉलिनेट, व्हाट वी कॉल्ड एज एनीमोफिलस। बिकॉज ये लाइट क्यों जरूरी है इसमें पोलन ग्रेन का लाइट होना, ताकि एयर की मदद से ये इजिली एक जगह से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाए और हवा में ज्यादा देर फ्लोट कर पाए, so that it can reach its destination. Anyway, so these are the characters of those flowers or plants which are normally pollinated by wind, what we call as anemophilous. So anemophilous यहाँ पे सही ऑप्शन है। Here pollen kit, ये एक पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का अंदर वाला वॉल होता है इंटाइन और आउटर वाला होता है एक्साइन, ये आउटर वाला है एक्साइन। यहां पे क्या है, पोलन किट इज जनरली फाउंड इन, जो भी प्लांट्स पॉलिनेशन करते हैं बाय यूजिंग इंसेक्ट्स एज एजेंट्स, उनके पोलन ग्रेन्स के ऊपर होता है, एक्साइन के ऊपर, एन ऑयली सब्सटेंस, oily substance present on the wall of pollen grain or exine of pollen grain is what we call as pollen kit. Pollen kit is an oily substance that's present on the exine or the pollen wall of insect pollinate plants. This pollen kit is actually the secretion of tapetum. Anyway, तो pollen kit किन वाले प्लांट्स में पाया जाता है, विच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, वी कैन कॉल देम एंटोमोफिलस। एंटोमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। एंटोमोफिलस फ्लावर्स में पोलन किट का होना एक खास कैरेक्टर है। नेक्स्ट इज विच वन इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? कोकोनट मोनोइशियस से, यकीनन कोकोनट मोनोइशियस मतलब क्या होगा, ये कोकोनट का प्लांट है, ट्री है इसका। कोकोनट में क्या होगा, दिस इज अ फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ओके, दिस फीमेल फ्लावर, और इसी प्लांट पे ऊपर होंगे फिर दीज आर द मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स। व्हेन अ सिंगल प्लांट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, unisexual male, unisexual female, two types of unisexual flowers are present on single plant, such a plant is called as monoecious. ऐसी कंडीशन पाई जाती है कोकोनट में। कोकोनट मोनोइशियस है, ये सही है, कोकोनट तो मोनोइशियस है, ट्रू। डेट पाम डायोशियस, डायोशियस मतलब क्या हो गया, डायोशियस हो गया दिस वन प्लांट, दिस अनदर प्लांट, इस प्लांट के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर सिर्फ यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स है, दूसरा प्लांट है इसके ऊपर सिर्फ यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स है। When one plant is male containing unisexual male flowers, another
plant is female containing unisexual female flowers, such a condition is called dioecious, meaning sexes are separate. जिस तरह human beings we are also dioecious, male separate, females are separate. तो जब plants में भी होगा ऐसा sex होगा separate, male होगा अलग, female होगा अलग, एक में होगा unisexual male flowers, दूसरे में होंगे unisexual female flowers, we call them, this is what we call dioecious. और date palm जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिकली फाइनेक्स डेक्टाइलिफेरा, तो ये एक डायोशियस प्लांट है, ट्रू। तीसरा वायोला प्लांट का नाम है, कोमिलिना एक और प्लांट है, और ऑक्सैलिस। क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस हो गया जब फ्लावर ओपन ही नहीं हो पाएगा। सम फ्लावर्स नॉर्मली ओपन एट मैच्योरिटी, फ्लावर ओपन होता है, फ्लावर के ओपनिंग को हम बोलते हैं नाम एंथीसिस, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। और जो ये फ्लावर्स ओपन होते हैं नॉर्मली दे आर कॉल्ड चेस्मोगेमस फ्लावर्स। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे वो करते हैं ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, वो कभी ओपन नहीं हो पाते। फेलियर ऑफ फ्लावर टू ओपन even at maturity is called as क्लिस्टोगेमी and those flowers are called क्लिस्टोगेमस flowers। और इन तीनों प्लांट्स के अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स पाए जाते हैं, ट्रू, सही बात है। तो आपका देखना विच वन इज करेक्ट, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, a normal or polygonum type of embryo sac is produced from megaspore mother cell after how many mitotic divisions। समझा होगा ये मतलब क्या है। आपने देखा होगा हमारे पास ओव्यूल है, दिस एन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बाहर से होते इसका एक या दो कवर हो सकते हैं, वी कॉल देम इंटेगमेंट्स, और अंदर इसका होता है ये जो ये स्पेस है, इट्स ऑल फिल्ड बाय डिप्लॉयड न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड न्यूसिलस। न्यूसिलस में एक सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, नॉर्मली न्यूसिलस की एक सेल ऊपर से डिप्लॉयड सेल है, मेरे को ब्रैकेट में 2n डिप्लॉयड सेल न्यूसिलस की, one cell of nucleus towards micropylar end, it differentiates from rest of the cells, it is called as megaspore mother cell। इस सेल को हम बोलते हैं नाम मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस। चलिए, इस मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस। मियोसिस में एक सेल बनाती है 4 सेल्स और क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा हाफ, रिडक्शन डिवीजन। तो इस सेल ने बनाए मियोसिस की और बनाए कितने सेल्स, 1 2 3 4, चारों के चार क्या होंगे, हैप्लॉइड, n n n n, और इन 4 सेल्स को हम बोलते हैं नाम मेगास्पोर्स। इनको हम मेगास्पोर्स बोलते हैं। लेकिन मसला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये ओव्यूल के अंदर एक प्रोसेस होता है। 4 मेगास्पोर्स में एक ही सर्वाइव करता है, तो 3 इसमें डिजेनरेट हो जाएंगे, एक इसमें सर्वाइव करेगा, मेगास्पोर। अब देखो मेगास्पोर पे हम पहुंच गए। ए नॉर्मल पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसने मियोसिस की, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। आफ्टर हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन्स, कितने माइटोटिक डिवीजन, यहां पे मियोसिक डिवीजन है तो हमें माइटोटिक देखना है। तो क्वेश्चन मियोसिस के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है, आगे देखेंगे वो क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो हमें देखना है जब मेगास्पोर मदर सेल बनाती है नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सेक, कितने माइटोटिक डिवीजन के बाद बनता है, दैट्स सी। अब जो ये मेगास्पोर बन गया मियोसिस की मदद से, 4 बन गए थे, 3 डिजेनरेट हो गए। अब ये करता है पहले फर्स्ट माइटोसिस, ये पहले करेगा फर्स्ट माइटोसिस यानी कि पहला माइटोटिक डिवीजन, एक बनाएगा 2, इसने बनाए 2 न्यूक्लिय। चलिए, अब ये दोनों करेंगे सेकंड माइटोसिस, ये भी बनाएगा 2 क्योंकि माइटोसिस ये भी करेगा, ये भी बनाएगा 2, ओके, सेकंड माइटोसिस के बाद 4 बन गए। अब चारों के 4 करेंगे थर्ड माइटोसिस, ये भी बनाएगा ऊपर वाला 2, दूसरा वाला भी 2 बनाएगा, ये तीसरा वाला भी 2 बनाएगा और चौथा वाला भी 2 बनाएगा। फिर इनका अरेंजमेंट होता है इन 8 का, फिर वॉल फॉर्मेशन होने के बाद ऐसे होता है, देयर आर 3 सेल्स टुवर्ड्स द okay, there are 3 cells towards the bottom here, इस साइड की ओर 3 सेल्स होते हैं, what we call एंटीपोडल्स, 3 होते हैं ऊपर called egg apparatus made of 2 synergids and egg, और सेंटर सेल में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियस। नाउ तो यहाँ पे 7 सेल्स होते हैं, ये आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेल्स हो गए, और न्यूक्लियस 8 है। हर सेल के अंदर अपना अपना न्यूक्लियस है, लेकिन बीच वाली सेंटर सेल में 2 है। न्यूक्लियस
एक ज्यादा है सेल्स के मुकाबले, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, इसी को हम बोलते हैं नाम नॉर्मल और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये बन गया मेगास्पोर मदर सेल से या मेगास्पोर से कितने माइटोटिक डिवीजन के बाद? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद बनता है। तो हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन? इट इज 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद बनता है। ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रूप फ्रूट ऑकर्स इन, ड्रूप हो गया ऐसा फ्रूट जिसके अंदर एंडोकार्प होगा हार्ड। कोई भी ऐसा फ्रूट, फ्रूट के नॉर्मली 3 लेयर्स होते हैं, बाहर वाला छिलका एपिकार्प, मिडल वाला पार्ट मीजोकार्प और इनर वाला पार्ट एंडोकार्प। जिन फ्रूट्स में एंडोकार्प होगा हार्ड, उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं नाम ड्रूप्स। और ड्रूप फ्रूट किस किस में होता है एंडोकार्प हार्ड? कोकोनट में आपने देखा, कोकोनट में बड़ा हार्ड होता है वो कवर। तो मैंगो में भी अंदर आप खाते हो एपिकार्प आप फेंकते हो, मेसोकार्प खाते हो, एंडोकार्प उसका हार्ड होता है, उसके अंदर फिर सीड रहता है। कोकोनट और मैंगो दोनों के अंदर पाया जाता है ड्रूप फ्रूट। टोमेटो में नहीं होते कोई ना सो सीड जैसे ना हार्ड सीड, हार्ड एंडोकार्प, उसमें सीधे होते हैं नॉर्मली। टोमेटो इज एडिबल फ्रूट, इसको हम रॉ भी खा सकते हैं। तो ये है टाइप ऑफ फ्रूट वी कॉल इट बेरी। एनीवे, कोकोनट एंड मैंगो, दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रूट कॉल्ड एज ड्रूप्स। नेक्स्ट, which one of the following statement is incorrect? Exine is absent at germ pore for growth of intine as pollen tube. देखिए ये मतलब क्या है। अभी मैंने पोलन ग्रेन बनाया था, एक पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन का अंदर वाला वॉल होता है इंटाइन कंटिन्यूअस वॉल, बाहर वाला लेयर होता है एक्साइन। ये एक्साइन है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, थिक होता है। एक्साइन जो है, एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। एनीवे, जिस जगह पे एक्साइन नहीं होगा इन जगहों को हम बोलते हैं नाम जर्म पोर्स। जर्म पोर्स, यहाँ पे मैंने 3 जर्म पोर्स में 3 जगह पे, यहाँ पे एक्साइन थोड़ा थिन है या होगा ही नहीं। जर्म पोर्स, जर्म पोर का क्या फंक्शन होता है? यही से ये इंटाइन बाहर निकल के आ जाता है एंड ग्रोथ ऑफ इंटाइन थ्रू जर्म पोर इज व्हाट वी कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। इसी को बोलते हैं इलांगेटेड इंटाइन इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब इंटाइन का ही नाम पड़ता है जब ये बाहर आ जाएगा थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। एनीवे, तो ये वाला एक्साइन इज एब्सेंट ए जर्म पोर्स, हाँ यकीनन जर्म पोर पे एक्साइन एब्सेंट होता है। ओके, फॉर ग्रोथ ऑफ इंटाइन एज पोलन ट्यूब, यकीनन वहां से पोलन ट्यूब आ जाएगा। ये वाला हमें देखना है इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट देखना है। ये वाला तो करेक्ट है, ये आएगा नहीं इसका जवाब। जनरेटिव सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस फॉर्मिंग 2 नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स, सही बात है। जैसे हमारे पास ये पोलन ग्रेन है, इसमें होता है न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस करता है डिवाइड, बनाता है 2 सेल्स। बड़ी वाली सेल को हम बोलते हैं नाम वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। स्मॉलर सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। लार्जर सेल इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। फिर क्या होता है? यह हो गया पहला माइटोसिस। जब सेकंड माइटोसिस हो जाती है, माइटोसिस नंबर सेकंड, वो करते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल अंडरगो सेकंड माइटोसिस। नीचे कौन सी सेल है? एज सच, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। वेजिटेटिव सेल एज सच, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है। फिर जनरेटिव सेल करते हैं सेकंड माइटोसिस और इससे बनते हैं 2 नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स, यकीनन। सो जनरेटिव सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस फॉर्मिंग 2 नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स, ट्रू। तो हमें लेकिन इनकरेक्ट वाला देखना, ये नहीं आ जाएगा क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। फिर पार्थीनियम कैरेट ग्रास जिसको हम बोलते हैं, काजेस पोलन एलर्जी, हाँ इसके पोलन ग्रेन से पोलन एलर्जी हो जाती है। ये सही ऑप्शन है, हमें लेकिन इनकरेक्ट वाला देखना है, इसको ये नहीं आ जाएगा। फिर वेजिटेटिव सेल इज डिप्लॉयड providing food to male gametes. Vegetative cell is not diploid, vegetative cell is haploid because pollen grain खुद haploid है, तो vegetative cell कहाँ से diploid बन जाएगी? This statement is incorrect. तो ये हमें incorrect ही देखना था, तो ये वाला statement इसका आ जाएगा correct answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, the incorrect statement is, इनमें से incorrect statement ढूंढना है आपको। पोलन टेबलेट्स आर यूज, पहले मैं आपको एक चीज बोलूं, पोलन ग्रेन्स आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन को खाया भी जा सकता है और मार्केट में तो अवेलेबल है पोलन ग्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ पोलन टैबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ पोलन सिरप्स, जो दिए जाते हैं एथलीट्स को और रेस हॉर्सेस को इनकी एफिशिएंसी, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। पोलन ग्रेन्स को खाया जा सकता है एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी, यकीनन। पोलन टैबलेट हमें देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से
ये ख्याल रखना है, हमें इनकरेक्ट देखना है कि करेक्ट। पोलन टेबलेट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, ये सही ऑप्शन है हमें, लेकिन इनकरेक्ट वाला देखना है, बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दे कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज 7 celled 8 न्यूक्लियर, जो मैंने आपको बोला था। नॉर्मल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज 7 celled 8 न्यूक्लिएट, जो मैंने अभी बोला था। ऐसे होता है ये, अगर मैं बनाऊंगा ओव्यूल, मैंने ओव्यूल बनाया यहाँ, ओव्यूल के अंदर मैं एम्ब्रियो सैक बनाऊंगा। इस एम्ब्रियो सैक में होते हैं 7 cells और 8 न्यूक्लियर। 3 cells टुवर्ड्स चलाजल एंड, नीचे वाले साइड में जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। 3 cells टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज व्हाट वी कॉल एग apparatus। बीच वाला इसमें होता है एग और दो साइड्स में होते हैं सिनर्जिड्स, ये वाला और ये वाला सिनर्जिड है। बीच में होते हैं 2 न्यूक्लियर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियर सेंट्रल सेल में। तो अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे सेल्स 1 2 3 4 5 6 7 तो सेल्स है, न्यूक्लियर 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 7 सेल से 8 न्यूक्लियर क्यों है? बिकॉज सेंट्रल सेल में, बीच वाली सेल में 2 न्यूक्लियर है, दैट्स व्हाई 8 न्यूक्लियर। को पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक 7 से 8 न्यूक्लियर, ये सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट वाला देखना है यहाँ पे। तो ये इसका सही ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं आ जाएगा इसमें, इनकरेक्ट वन, ये करेक्ट है। सिनर्जिड से फिलिफॉर्म एपैरेटस, जो ये 2 सिनर्जिड से एग को जो सराउंड करते, इनके ऊपर थोड़ा डिफरेंट कलर में इस्तेमाल करूंगा। इन सिनर्जिड्स के ऊपर मौजूद होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ सिनर्जिड्स इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिलिफॉर्म apparatus। फिलिफॉर्म apparatus और द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन 2 सिनर्जिड्स, और यही करते हैं पोलन ट्यूब को गाइड टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक, टुवर्ड्स द एग एक्चुअली। तो ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है, लेकिन हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, तो ये भी इसका नहीं आ जाएगा। फिर एम्ब्रियो सैक इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गेमीट, नो, एम्ब्रियो सैक इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गेमिटोफाइट, नॉट फीमेल गेमीट, फीमेल गेमिटोफाइट। ये वाला स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट ही देखना था। दिस इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। 11, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स सीन इन ए प्लांट। एक प्लांट में फीचर्स पाए जाते हैं। चलो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर जनरली फाउंड इन सेपरेट फ्लावर्स, मतलब ये डायोशियस हो सकता है लाइकलीहुड, क्योंकि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स अलग अलग फ्लावर्स में है, अलग अलग प्लांट में भी हो सकते हैं। ये आप मान लीजिए डायोशियस कंडीशन है, अलग अलग सेक्सेस आर सेपरेट। द फीमेल फ्लावर हैज लॉन्ग फेदर लाइक स्टिग्मा, जो फीमेल फ्लावर उसमें स्टिग्मा है फेदरी, जो मैंने बोला था हियरी प्लूमोस। The male flowers have number of long filaments terminating into exposed stamen, यानी कि स्टेमिन फ्लावर से बाहर आ गए हैं। The flower of this plant would most likely be pollinated by, definitely it will be pollinated by wind, definitely it will be pollinated by wind। आप बोलेंगे क्यों? देखो, स्टेमिन इसने बहुत ज्यादा बाहर रखे हैं फ्लावर से, so that wind ब्लो की वजह से, जब विंड ब्लो हो जाएगी, आंधी आ जाएगी, वेरी इजिली द पोलन ग्रेन्स विल बी टेकन अवे बाय द विंड करंट्स। और फीमेल फ्लावर्स के पास लॉन्ग फेदर लाइक स्टिग्मा है, ताकि पोलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप किया जाए। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग डायोशियस है। यस, मेजॉरिटी ऑफ दीज प्लांट्स विच अंडरगो विंड पॉलिनेशन दे आर नॉर्मली डायोशियस, दे हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो विंड पॉलिनेशन विल बी कॉमन इन सच टाइप ऑफ प्लांट्स। अब मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम ए और कॉलम बी आपको मिलाने, इसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। ये ख्याल रखिएगा, इनकरेक्ट ढूंढना है कि करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इनमें से आपको ढूंढना है। आपको याद है टैप्टम आपने पढ़ा होगा, टैप्टम पार्ट है एंथर का, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, इसका मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन, मेन फंक्शन, तो नरिशमेंट न्यूट्रिशन। गो ए क्या आ जाएगा? थर्ड। ये देखो ए किसमें थर्ड, ए का आ जाएगा थर्ड। गो ये आ नहीं सकता है, डी ऑप्शन खत्म हो गया, बिकॉज टैप्टम करता है नरिशमेंट, तो ए का थर्ड आ जाएगा। 3 में भी कंफ्यूजन है, तो डी हमने रिजेक्ट किया ऑन स्पॉट। इसके बाद एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, ये प्रोटेक्शन करता है, बाहर वाला तो हमेशा प्रोटेक्शन देगा, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन देगा, तो प्रोटेक्टिव इन नेचर। बी का आ जाएगा सेकंड, बी का आ जाएगा सेकंड, यहां देखो बी सेकंड, बी सेकंड, ए बी इस वाले में और इस वाले में, को ऑप्शन नंबर बी भी रिजेक्ट हो गया, तो बी सेकंड दोनों में है। सी एंडोथीशियम,
ये भी एक और लेयर है, एपिडर्मिस के बाद होता है एंडोथीशियम भी। ये करता है डिहिसेंस ऑफ एंथर, रप्चरिंग ऑफ एंथर यही करता है, डिहिसेंस, हेल्प्स इन एंथर डिहिसेंस। गो सी का आ जाएगा फर्स्ट, हमें देखना है सी का आ जाएगा फर्स्ट, गो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आ जाएगा, हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन सी का आ जाएगा। वो डी का आ जाएगा 4, डी का एक्साइन associated with sporopollen. Exine is made of sporopollen. Sporopollen is one of the resistant substances to decay. Anyway, आगे बढ़ेंगे। Which the following statements are correct? Correct option आपको देखने इसमें से कौन कौन है। Vegetative cell is smaller and have abundant reserve food. No. Vegetative cell अभी मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं हम टू सेल्ड पोलन ग्रेन दिखाऊंगा। लार्जर सेल इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, इसका होता है इर्रेगुलर न्यूक्लियस, और स्मॉलर सेल इज व्हाट वी कॉल्ड एज जनरेटिव सेल, ये होता है डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें स्पिंडल शेप्ड सेल होते हैं। जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर विद इरेगुलर न्यूक्लियस। एनीवे, तो वेजिटेटिव सेल इज स्मॉलर, नहीं, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर, ये ऑप्शन गलत, हमें करेक्ट देखना है, ये वाला गलत है। ये इसमें फूड रिजर्व होता है, इंडीड फूड होता है, लेकिन ये स्मॉलर नहीं, ये लार्जर होती है। मकलो यू वर्ड। द वेजिटेटिव न्यूक्लियस इज रेगुलर इन शेप, नहीं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस इज इरेगुलर इन शेप, ये ऑप्शन भी गलत है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड हैज जनरस साइटोप्लाज्म, इंडीड इट इज ट्रू, third option is true. Generative cell is small and has enough food, this cytoplasm, dense cytoplasm. Pollen grains are always shed at 2 cell stage. No, 60% of angiosperms show pollination at 2 cell stage and around 40% show at 3 cell stage. तो यहाँ पे लिखना है pollen grains are always shed, not always. तो ये वाला ऑप्शन गलत है। In 2-celled pollen grains, the 2 cells are 2 male gametes. No, in 2-celled pollen grains, 2 cells are generative cell and vegetative cell. ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपका कौन सा आ जाएगा यहाँ पे सही? ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, रेस्ट आर रॉन्ग। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 14, विच वन इज ट्रू अबाउट पोलन ग्रेन्स? पोलन ग्रेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको देखना है कौन कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। हाईली न्यूट्रिटिव, ये हमें पता है, अभी हमने देखा था, हमें ट्रू देखना है, सही देखना है हमें। हाईली न्यूट्रिटिव, इंडीड पोलन ग्रेन्स आर हाईली न्यूट्रिटिव। पोलन ग्रेन्स एक्ट एज मेल गेमेटोफाइट्स, यस, पोलन ग्रेन बनाता है ना मेल गेमेट, ये तो मेल गेमेटोफाइट एक्ट करता है। इन राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स आर वायबल फॉर ईयर्स। नो, इन राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल ओनली फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर अंदर इनकी वायबिलिटी, इनकी फंक्शनैलिटी, इनका लिविंग नेचर ये खत्म हो जाता है। ये ऑप्शन इनका गलत है इसका। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है। लिक्विड नाइट्रोजन में कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल हम स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स, और स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट टेम्परेचर 196 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। कोल्ड कंडीशन में स्टोर करना लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ये ऑप्शन सही है। पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ रेस हॉर्स एथलीट्स, आया था, ये हम करते ही तो आपको देखना है ट्रू इनमें से कौन है। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, अरे कहाँ गया, फर्स्ट, फोर्थ, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, 4 एंड फिफ्थ, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, ये वाला, फर्स्ट, सेकंड, 4 एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, 4 एंड फिफ्थ, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ जाएगा। चूज एन इनकरेक्ट पेयर, इनमें से देखिए कौन सा गलत मैच्ड है। यहां पे दिखा हुआ है सेल टाइप, ये सेल टाइप दिखाया हुआ इससे, यहां से प्लॉइडी, इट इज नॉट प्लांट, इट इज प्लॉइडी लेवल, PLOIDY, इट्स प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी मीन्स क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, ये सही है, हमें देखना है, लेकिन इनकरेक्ट वाला ये सही है, ये सही है, ये सही ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नहीं आ जाए। MMC माइक्रोस्पोर मदर या मेगास्पोर मदर सेल, दोनों तो डिप्लॉइड ही होते हैं, ये डिप्लॉइड है, हमें नहीं चाहिए। फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, सही बात है, मेगास्पोर मियोसिस से बनता है, हैप्लॉइड होता है। फीमेल गेमेटोफाइट डिप्लॉइड, नो, फीमेल गेमेटोफाइट मेगास्पोर से बनता है, मेगास्पोर खुद हैप्लॉइड है, फीमेल गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमें देखना है कौन है, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड है इसके साथ, इसका आ जाएगा डी। Then, how many meiotic divisions are required to produce 30 seeds? देख लीजिए,
अभी नॉर्मल प्रोसेस जब हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में. वी कॉल सीड एज रैपिड ओव्यूल और मच्योर ओव्यूल. तो ओव्यूल कब मच्योर हो जाता है? जब इसमें प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. हमारे पास ये ओव्यूल है, ये गौर से देखना, ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है. हमारे पास ये ओव्यूल है. ओव्यूल को जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर ओव्यूल को फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, दिस सीड विल बी अबॉर्टेड सीड, ये खत्म, ये फंक्शनल नहीं रहेगा. तो हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन, देखो मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 30 सीड्स. 30 सीड्स बनाने के लिए आपको कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए? देखो मैंने बोला अभी ओव्यूल तभी बन जाएगा सीड जब इसमें प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. एक ओव्यूल को लगता है एक पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन के लिए. याद रखिएगा, वन ओव्यूल, एक ओव्यूल को नीड्स वन पोलन ग्रेन. एक ओव्यूल को लगता है एक पोलन ग्रेन किसके लिए? फर्टिलाइजेशन. ये याद रखिएगा, वन ओव्यूल रिक्वायर्स और नीड्स वन पोलन ग्रेन टू अंडरगो फर्टिलाइजेशन. इट्स गुड. अब मसला है 30 सीड्स बनाने के लिए आपको कितने पोलन ग्रेन लगेंगे? 30. वो हम देखेंगे बाद में. पहले अंदर जो प्रोसेस होता है ओव्यूल के अंदर, ताकि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इसमें हो पाए, फिर इससे पहले क्या होता है? अभी मैंने बोला था आपको, इसमें होती है मेगास्पोर मदर सेल. इसमें होती है मेगास्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉयड सेल होती है. इसमें हो जाती है मियोसिस. मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस. इसमें एक मियोसिस हो जाती है. फिर बनते हैं, फिर से बोलूंगा, वो 4 मेगास्पोर्स जो हैप्लॉइड होते हैं. 3 इसमें डिजेनरेट हो जाते हैं. ओनली 1 इज फंक्शनल. और वो 1 फंक्शनल मेगास्पोर, अभी मैंने आपको बोला था कुछ समय पहले, ये करता है 3 माइटोटिक डिविजन्स. 3 माइटोटिक डिवीजन बनाता है 7 सेलेड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. ये तो आपको पता है, लेकिन हमें चाहिए नहीं माइटोटिक डिवीजन, हमें मियोटिक डिवीजन चाहिए. अब देखो, एक 7 सेलेड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक इसके अंदर बनाने के लिए मेगास्पोर मदर सेल से आपको एक मियोसिस लगेगी. तो आपको ओवरऑल 30 ओव्यूल्स बनाने के लिए आपको 30 पीएमसी चाहिए, आई मीन दीज मेगास्पोर मदर सेल चाहिए, और 30 मियोटिक डिवीजन जाएंगे उनमें. तो आपको लगेंगे 30 सीड. कहां गया? हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 30 सीड्स. 30 सीड्स बनाने के लिए आपको 30 ओव्यूल लगेंगे. 30 ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए आपको लगेंगे 30 मियोटिक डिवीजन्स. तो आपको पहले ओव्यूल के अंदर अगर हम 30 ओव्यूल्स की बात करेंगे, 30 ओव्यूल्स में आपको लगेंगे 30 मियोटिक डिवीजन. 30 मियोटिक डिवीजन्स, because 1 meiotic division is required to produce 1 embryo sac in an ovule. तो 30 के लिए आपको 30 meiotic division चाहिए. लेकिन ओव्यूल तभी हो जाएगा कन्वर्ट सीड के अंदर जब इसमें प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. फर्टिलाइजेशन इसमें करते हैं गेमीट होते हैं मौजूद विद इन द पोलन ग्रेन. तो आपको पोलन ग्रेन लगेंगे 30 पोलन ग्रेन्स आपको लगेंगे इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए. एक पोलन, आपको पता है पीएमसी पोलन मदर सेल डिप्लॉयड सेल होती है एंथर के अंदर. इसमें भी होती है मियोसिस. जब इसमें मियोसिस हो जाती है पीएमसी में पोलन मदर सेल में, एक मियोसिस से बनते हैं 1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन. समहाउ वी कैन कॉल इट पोलन ग्रेन लूजली. हालांकि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में फर्क है. माइक्रोस्पोर यूनिसेलुलर होता है. जब ये डिवीजन करता है ये बनता है 2 सेलेड, इसको पोलन ग्रेन मानते हैं हम. जब ये 3 सेलेड बन जाएगा उस वक्त हम मेल गेमेटोफाइट इसको बोलते हैं. एनीवे, normally we use these terms as a synonyms. So 4 माइक्रोस्पोर्स 4 पोलन ग्रेन्स आपको बनते हैं एक मियोसिस से. चारों के 4 माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे. आगे शाबाश. अब आपको एक मियोसिस से बनेंगे 4. आपको कितने पोलन ग्रेन चाहिए? 30 ओव्यूल्स के लिए आपको 30 पोलन ग्रेन चाहिए. एक मियोसिस से आपको बनेंगे 4. आपको 30 चाहिए. 30 कितने मियोसिस से बने होंगे? 30 डिवाइड बाय 4, वो कितना होगा? 7.5. 7.5 आपको 24 4 28, हाँ 7.5 मियोटिक डिविजन्स. आपको 7.5 मियोटिक डिवीजन लगेंगे 30 माइक्रोस्पोर्स 30 पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए. कॉमन सेंस. तो अगर आपको 30 चाहिए, यहां से आपको 30 ओव्यूल्स चाहिए, तो हाँ यहाँ पे 30 मियोटिक डिविजन्स, 30 ओव्यूल्स के लिए 30 मियोटिक डिविजन्स, और पोलन ग्रेन आपको 30 चाहिए, उसमें से 7.5 30 प्लस 7.5 37.5 मीन्स 37.5 यहाँ पे है नहीं, तो
38 is the closest. Actual answer will be 37.5 meiotic division, actual answer. तो यहाँ पे सबसे क्लोज इसका है 38. आगे बढ़ेंगे. The structure present in synergids which guides the pollen tube are, अभी मैंने बोला filiform apparatus is a finger-like projections that are present on the walls of synergids that guide the pollen tube towards the egg apparatus. Dioecious condition in plants prevent. Dioecious मतलब हो गया, dioecious मतलब समझो पहले, dioecious मतलब हो गया ये एक प्लांट है, this is male, unisexual male, this another plant, this is unisexual female, means dioecious condition. Dioecious condition in plants prevents. ये prevent क्या करेगा? ऑटोगेमी हो गया within the flower, bisexual flower में pollination होना, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है. कैसे हो जाएगा भाई? मतलब अगर dioecious condition होगी ऑटोगेमी कहाँ से हो पाएगी? ऑटोगेमी इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो dioecious condition से क्या क्या प्रिवेंट होता है? क्या ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगी? डेफिनेटली. अब एक फ्लावर जब अपना पोलन ग्रेन देगा दूसरे फ्लावर को अगर सेम प्लांट पे होगा उसको हम बोलते ना गाइटिनोगेमी. तो ये भी यहां पे पॉसिबल नहीं है. ऑटोगेमी बट नॉट गेटिनोगेमी. ये तो गेटिनोगेमी भी ऑटोगेमी भी दोनों ये प्रिवेंट करें. प्रिवेंट्स ऑटोगेमी भी बट नॉट इसने लिखा है, ये नहीं आ जाएगा, दोनों प्रिवेंट हो जाएंगे. गाइटिनोगेमी बट नॉट ऑटो, ये तो होगा ही नहीं. बोथ ऑटोगेमी एंड गाइटिनोगेमी. ऑटोगेमी हो गया विद इन द फ्लावर होना, यहां तो पॉसिबल नहीं है, सेक्सेस आर सेपरेट. ना गाइटिनोगेमी हो सकते. गाइटिनोगेमी में क्या होता है? एक फ्लावर पोलन ग्रेन देता है दूसरे फ्लावर को, लेकिन प्लांट सेम होता है. यहां तो डायोशियस कंडीशन अलग अलग है, तो यहां पे बोथ ऑटोगेमी एज वेल एज गाइटिनोगेमी विल बी प्रिवेंटेड व्हेन देयर इज dioecious condition. A dicotyledonous plant bears flowers. एक डाइकॉट प्लांट है, bears flowers, फ्लावर्स है, but never produce fruits and seeds. एक प्लांट है आपके पास, फ्लावर है इसमें, एंजियोस्पर्म है, डाइकॉट है, लेकिन फ्लावर होने के बावजूद भी ये कभी भी फ्रूट या सीड नहीं बना पाता है. Fails to produce seeds or fruits. The most probable cause or reason for above situation is, क्यों नहीं बना पाएगा एक प्लांट फ्लावर होने के बावजूद भी सीड या फ्रूट? क्योंकि एक कंडीशन इसमें हो सकती है. देखो, अगर प्लांट में ओनली फीमेल फ्लावर है, बन सकता है सीड. यस, फीमेल फ्लावर की ओवरी तब्दील हो जाएगी वक्त के साथ. इसमें ओवरी विल कन्वर्ट टू फ्रूट, ओव्यूल्स विल ट्रांसफॉर्म टू सीड. लेकिन अगर सिर्फ एक प्लांट के अंदर सिर्फ मेल फ्लावर से ओनली फॉर पॉलिनेशन, तो मेल फ्लावर से पोलन डोनर करेगा एक्ट, तो इसमें कैसे पॉसिबल है ये सीड सीड या फ्रूट बनाएगा? तो आपको यही वाला ऑप्शन ढूंढना है. तो प्लांट इज डायोशियस, अलग अलग है, एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट. लेकिन पिस्टिलेट फ्लावर मतलब फीमेल फ्लावर तो बनाएगा फ्रूट, ये नहीं आ जाएगा इसके. प्लांट इज डायोशियस एंड बियर्स बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमनेट फ्लावर्स, फिर तो सीड बनना चाहिए डेफिनेटली, ये भी नहीं आ जाएगा. प्लांट इज मोनोशियस, मोनोशियस तो इतने प्लांट है वो तो सीड बनाते हैं. कोकोनट इज मोनोशियस, फ्रूट और सीड बनाता है. प्लांट इज डायोशियस, मेल अलग फीमेल अलग, एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट मींस मेल फ्लावर, मतलब कि सिर्फ पोलन ग्रेन डोनेट करता है. इसमें कैसे पॉसिबल है ये बनाएगा फ्रूट और सीड? इसका डी ऑप्शन आ जाएगा. क्वेश्चन 20. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स के अंदर किस सीक्वेंस से बनता है व्हाट वी कॉल फीमेल गेमेटोफाइट? देखो, ये सारी शुरुआत होती है न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस के एक सेल जिसको हम बोलते हैं ना मेगास्पोर मदर सेल, वही करते मियोसिस बनाते हैं मेगास्पोर, फिर उसमें जो होता है 3 माइटोटिक डिवीजन बनाता है व्हाट वी कॉल्ड एज फीमेल गेमेटोफाइट. तो न्यूक्लियस से आगाज होता है. तो यहां भी न्यूक्लियस है, यहां नहीं, यहां न्यूक्लियस से आगाज. देखो, ये भी नहीं आ जाएगा बिकॉज इसमें न्यूक्लियस स्टार्ट में नहीं है. ये भी नहीं आ जाएगा, इसमें न्यूक्लियस स्टार्ट, न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होता है एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन या फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन. तो न्यूक्लियस यहां भी. अब इन दो में से आपको ढूंढना है. न्यूक्लियस की एक सेल एक्ट करती है मेगास्पोर मदर सेल. देखते हैं ये माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर कहां? माइक्रोस्पोर तो आएगा ना, माइक्रोस्पोर बनता है एंथर में. मेगास्पोर मदर सेल ये वाला, ये भी ठीक लग रहा है. फिर मेगास्पोर चैटर बनेगा, उसमें से 3 हो जाएंगे डिजेनरेट, एक फंक्शनल रहेगा मेगास्पोर, वो बनेगा फीमेल गेमेटोफाइट. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. Question 21. The flowers of a plant has following characters. एक प्लांट है, इसमें फ्लावर के ये वाले कैरेक्टर है. पोलन ग्रेन डेंसिटी हायर देन वाटर. जब पोलन ग्रेन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, पोलन ग्रेन सिंक हो जाएगा वाटर के अंदर, ये डूब जाएगा पानी में. सही बात है. पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग, मतलब लंबे है, स्फेरिकल नहीं, थोड़ा इलॉन्गेटेड है.
पोलन ग्रेन्स आर रिबन शेप्ड, शेप ऐसी है। एग्जाम्पल इज सी ग्रास। सी ग्रास जैसे इसका एक्चुअली साइंटिफिक नाम है जोस्टीरा मरीन एंजियोस्पर्म। ये मरीन एंजियोस्पर्म में ये पाया जाता है साल्टी वाटर्स में। तो सी ग्रास एग्जाम्पल है, रिबन लाइक पोलन है, लॉन्ग है, और पोलन ग्रेन की डेंसिटी थोड़ा ज्यादा, मतलब वो पोलन ग्रेन डूब जाएगा पानी में तो पॉलिनेशन कहाँ हो जाएगी? विद इन द वाटर, तो वाटर के अंदर हो जाएगी। तो बिलो वाटर, अबव वाटर, नन ऑफ दिस, बिलो और अबव, डेफिनेटली इट विल बी बिलो द वाटर, बिकॉज पहले ही ऑप्शन है ना, पोलन ग्रेन्स आर डेंसर देन वाटर। तो जब डेंसिटी ज्यादा होगी पोलन ग्रेन डूब जाएगा, अंदर ही करेगा पॉलिनेशन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, एक्चुअली बिलो वाटर होना, अगर सरफेस पे हो जाएगी एपिहाइड्रोफिली। ओके, गाइटोनोगेमी। गाइटोनोगेमी मैंने आपको बोला था, जब एक प्लांट के ऊपर होंगे दो किस्म के फ्लावर, मेल भी और फीमेल भी, और ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower present on same plant। जैसे मेरे पास एक प्लांट है जिसको मोनोशियस बोल सकते हैं। ये एक प्लांट है, इसमें ये मेल फ्लावर है, यही इसी प्लांट के ऊपर दूसरी जगह पे है फीमेल फ्लावर। Presence of two types of unisexual flowers on a single plant, on a single tree is what we call as monoecious। ये monoecious condition है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट इट्स कॉल्ड गाइटोनोगेमी। आपको ये ऑप्शन ढूंढना है, ये वाला, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ओके, प्रेजेंट ऑन दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये हमें ढूंढना है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन टू फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। यस, ये सही ऑप्शन है फिलहाल, ये फिलहाल सही ऑप्शन है। अच्छा, गाइटोनोगेमी इज जेनेटिकली ऑटोगेमी। यस, जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी बिकॉज प्लांट इज सेम, जीनोम विल बी सेम। ये तो इसका जाइगोट से शुरुआत हो गई, ये सारा जीनोटाइप इसका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो गाइटोनोगेमी इज जेनेटिकली ऑटोगेमी। यस, इंडीड इट इज। Geitonogamy is functionally xenogamy. Gaitronogamy is functionally xenogamy or allogamy, what we call cross pollination. Yes, टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होती है और इसमें डेफिनेटली पॉलिनेटर लग जाएगा। जब पॉलिनेटर लग जाएगा वो तो क्रॉस पॉलिनेशन के साथ ये वाला कैरेक्टर्स का मैच होता है। तो गाइटोनोगेमी इज फंक्शनली xenogamy और एलोगेमी, जिसको हम बोलते हैं एलोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। xenogamy, एलोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन एक ही बात है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स सही है। आगे 23rd क्वेश्चन, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है, करेक्ट वाला कौन सा इसमें करेक्ट है, बड़ा लंबा है। देखो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग इज अनदर नेम फॉर सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन। इनब्रीडिंग से अगर कंटिन्यूअस एक प्लांट करेगा इनब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें डिक्रीज होता है यील्ड और प्रोडक्शन, दिस कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन किससे हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन से डेफिनेटली। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये हो जाएगा आपको सेल्फ पॉलिनेशन से, ये वाला। तो ए का आ जाएगा 8, ए का आ जाएगा 8 गो 8, इसमें भी मतलब सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया फिलहाल। डाइकोगेमी हो गया जब मेल और फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, डाइकोगेमी। अब देखना डिफरेंट टाइम्स में क्या है, जीनोम नहीं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन नहीं, फ्लावर इधर स्टेम नहीं, बैरियर बिटवीन नो, मैच्योरेशन ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव एट डिफरेंट टाइम्स। यस, को डाइकोगेमी का आ जाएगा ये, जब मैच्योरेशन ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा और मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। सो डाइकोगेमी। बी का आ जाएगा V5, बी का आ जाएगा बी का वी ये। अब ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया बिकॉज इसमें ये है, तो इसमें इन दो में कुछ कंफ्यूजन है। तो सी हम देखेंगे, प्रोटो एंड्री, प्रोटो मीन्स पहले, एंड्री मीन्स एंड्रोशियम, पहले एंड्रोशियम में सिटेमिन मैच्योर हो जाएगा कार्पल के मुकाबले में। प्रोटो एंड्री हम देखेंगे सिटेमिन कहाँ मैच्योर हो जाएगा पहले, देखिए मेल एंड फीमेल प्रेजेंट नो बैरियर, मैच्योरेशन ऑफ पोलन बिफोर स्टिग्मा रिसेप्टिव, पोलन मेल पार्ट, पोलन ग्रेन, तो ये पहले मैच्योर हो जाएगा। गो वी आई, गो मीन्स डी का आ जाएगा VI 6, डी का आ जाएगा VI, हमें इन दो में से लेना है। डी का आ जाएगा VRA, वी मैच्योरेशन ऑफ पोलन बिफोर स्टिग्मा रिसेप्टिव आफ्टर बिफोर VI, तो VI कहाँ हो गया, डी हमें कौन सा सी, अच्छा सी हमें देखना है, CVI, हाँ ये सही है। सी का कहाँ हो गया, सी का VI, ए ऑप्शन इसका सीधे लग रहा है सही है बिकॉज यहाँ पे इसमें 4 है,
4 तो इसमें आएगा नहीं। अब बाकी ऑप्शन भी आप चेक करो। डी प्रोटोगाइने, मतलब गाइनेशन पहले मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरेशन ऑफ पोलन आफ्टर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, सही बात है। ई हर्कोगेमी, मैकेनिकल बैरियर होगा। ई का क्या लिख रहा है, आईवी बैरियर, हाँ बैरियर विद इन द वर्लस, सही बात है। F1, एफ हो गया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिकली कंट्रोल्ड। एफ का आ जाएगा फर्स्ट, जेनेटिकली मैकेनिज्म, यस ये हमने देखा ऑलरेडी। जी का आएगा थर्ड, जी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जी का आएगा थर्ड, फ्लावर इधर स्टेम में पछले मीन्स यूनिसेक्सुअल। एच का आ जाएगा सेकंड, डायोशियस कंडीशन, मतलब मेल एंड फीमेल these parts are present, flowers are present on different plants. Dioecious H second means male and female flowers are present on 2 different plants. That's it, go A वाला। फिर एक क्वेश्चन नंबर 24, which the following is are true, सही कौन कौन है इसमें। पोलन ट्यूब इमर्जेस थ्रू जर्म पोर्स, सही बात है, जर्म पोर से पोलन ट्यूब आता है बाहर, एक्चुअली इंटाइन आता है बाहर इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। Pollen grain may shed a 2-cell stage or 3-cell stage, सही। Majority of angiosperm show pollination 2-cell stage, but around 40% show it 3-cell stage, सही। Pollen tube enters through micropyle, yes। अगर हम देखेंगे ओव्यूल है, ये ओव्यूल है फॉर एग्जांपल, इसमें एम्ब्रियो सैक है ये। Pollen tube enters into ovule through this opening. This opening is called as micropyle. Pollen tube mainly enters into ovule through micro, हालांकि ये इंटीग्मेंट से भी जा सकता है, ये चलाजर एंड से भी जा सकता है, but most common route is micropyle, what we call porogamy. Anyway, this is also true. The filiform apparatus present in antipodal cells guides spore, no, antipodals पे कहाँ गया, एंटीपोडलस पे फिलिफॉर्म apparatus नहीं होता है। फिलिफॉर्म apparatus is a character of synergids, ये गलत है, ये गलत है। इन 3-celled pollen grains the vegetative cell divides to produce 2 में नहीं 3-celled pollen में देखो वेजिटेटिव सेल तो डिवाइड करती नहीं है, वो तो जनरेटिव सेल डिवाइड करती है, फॉर्म 2 नोन नहीं, ये गलत है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसका सही आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आ जाएगा। 25 इन कोकोनट वाटर इज ओके, इन कोकोनट वाटर इज सिल्वर। देखो आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट का फ्रूट, कोकोनट का फ्रूट जो है उसका बाहर वाला छिलका होता है एपिकार्प, ग्रीन कलर का, वो वहीं से उठाते हैं। मीजोकार्प उसका होता है फाइब्रस, जिसको हम क्वायर बोलते हैं, तो श्वसनता सुमास्यु। इसके बाद एंडोकार्प इसका हार्ड होता है बिकॉज ये ड्रू फ्रूट है। इसके अंदर होता है इसका सीड, जो कोकोनट का हम पार्ट खाते हैं वो सीड है, एक्चुअली एंडोस्पर्म है। इसमें क्या होता है, ये बाहर वाला पार्ट जो आपने देखा होगा व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म और कॉपरा जिसको हम बोलते हैं। तो वाटर इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, अंदर जो होता है इसमें आपने देखा होगा नारियल पानी होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो बाहर वाला होता है व्हाइट कलर का सॉलिड, दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कोकोनट में आप क्या खाते हो, सीड, कौन सा पार्ट, एंडोस्पर्म। विच एंडोस्पर्म, सेल्यूलर हम पीते, न्यूक्लियर हम पीते हैं और सेल्यूलर हम खाते हैं, बिकॉज ये वाटर होता है और वो बाकी सॉलिड। वाटर इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, वाटर नहीं, वाटर इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये रॉन्ग है। वाटर इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड व्हाइट कर्नल इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सही है, व्हाइट कर्नल इज सेल्यूलर, ये सही है। व्हाइट कर्नल इज न्यूक्लियर नहीं आ सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। The different stages of embryo development is, देखो जब एम्ब्रियो बनता है ये कुछ स्टेजेस के थ्रू पास होता है। जैसे हमारे पास जायगोट है, ये जायगोट बन गया थ्रू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, व्हाट वी कॉल एज सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन। तो जायगोट क्या होता है, फिर जायगोट एक डिप्लॉयड सेल है या फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल है ये। इसमें क्या होता है, इसमें फिर डिवीजन होते हैं, ट्रांसवर्स, वर्टिकल, व्हाटएवर जो होगा। जायगोट डिवीजन के बाद पहले बनाता है मास ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं नाम प्रो एम्ब्रियो। इसके बाद बनता है ये, और डिवीजन करता है, बनता है यहां पे ग्लोब्यूलर स्टेज। इसके बाद बनता है हार्ट शेप्ड स्टेज या हार्ट स्टेज। इसके बाद यही कन्वर्ट होता है, बनता है मैच्योर एम्ब्रियो, जिसमें 2 कॉटलिडन होते हैं, फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं, फिर उसमें पोलीमर रेडिकल व्हाटएवर। तो क्या क्या स्टेज होता है यहाँ पे, इट इज फर्स्ट प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर स्टेज, हार्ट स्टेज और मैच्योर एम्ब्रियो। तो PGHM आप याद रखेंगे, प्रो एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये नहीं आ जाएगा, ये तो
पहले मैच्योर आ गया, ग्लोब्यूलर तो बाद में आ जाएगा। प्रो एम्ब्रियो इन दो में सही निर्णय है। प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? ग्लोबुलर स्टेज, तो ऑप्शन बी। इसने हार्ट स्टेज पहले ही लाया है, तो प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट स्टेज एंड मैच्योर एम्ब्रियो। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। 27. The seed viability of Lupinus articus, lupine जिसको हम बोलते हैं, इसकी हाईएस्ट नोन सीड वायबिलिटी, इसका सीड रहता है डॉर्मेंट फॉर राउंड अबाउट 10,000 years। 10,000 years ये है इसकी हाईएस्ट नोन सीड वायबिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड इन Lupinus articus, lupine, जिसका सीड निकाला गया आर्टिक टुंड्रा से। इसकी सीड वायबिलिटी देखी गई 10,000 years के बाद भी सीड वायबल था और ये जर्मिनेट आराम से हो पाया। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए और बी को करेक्ट ये कीजिए, मैच कीजिए और करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए। पार्थेनोकार्पी, फ्रूट का बनना फर्टिलाइजेशन के बगैर, जब फ्रूट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बगैर तो उसमें सीड का होना पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन is called parthenocarpy and parthenocarpic fruits are seedless। जैसे बनाना है parthenocarpic produced, ऐसे कुछ ग्रेप्स के वैरायटीज है बेदानदाशी में आसान से parthenocarpic produced, कुछ ऑरेंजेस के वैरायटी है वो भी parthenocarpic produced होते, कुछ में तो होता है वो दाना सीड, लेकिन बहुत सारे वैरायटीज है जिनमें नहीं होता। ये parthenocarpy हो गया। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज व्हाट वी कॉल एज parthenocarp। parthenocarp को ढूंढो। सीड फॉर्मेशन विदाउट, नहीं सीड फॉर्मेशन नहीं, ये है गए मोर देन वन। सीडलेस फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, हाँ सीडलेस फ्रूट, सीड नहीं यहाँ पे सीड फॉर्मेशन है, ये वो तो अलग बात है, बोलाऊंगा। सीडलेस फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ये हो गया पार्थेनोकार्पी। एक आ जाएगा थर्ड, मीनस इसमें ये ना आ सकता, ये भी नहीं आ सकता है, पहला भी नहीं आ सकता, पाने द्रव बी ऑप्शन नेवर। देखो बी का सेकंड डेफिनेटली आ जाएगा। पॉली एम्ब्रियोनी हो गया, एक से ज्यादा एम्ब्रियो होना सीड के अंदर, पॉली एम्ब्रियोनी, मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सेम सीड, से बात है। और तो बी का आ जाएगा सेकंड, बी का यकीनन सेकंड है। सी एपोमिक्सिस होगा, मैंने बोला था आपको, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका ये आ जाएगा। सोमेटिक एम्ब्रियोजेंस होगा, सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो का बनना, जो टिश्यू कल्चर में आप देखते हो। दैट्स इट। 29 स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, मतलब को जो फ्लावर ओपन नहीं हो पाएगा उसके लिए एक ही ऑप्शन है, ऑटोगेमी करना। सही बात है, ट्रू। दिस इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड, दीज फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, यकीनन ये तो ओपन ही नहीं हो पाए। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर दोज व्हिच फेल टू ओपन। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन नाउ, टिपिकल वन। टू प्रोड्यूस 32 मेल gametes, important. To produce 32 male gametes, the number of meiotic and mitotic divisions required are respectively. एंजियोस्पर्म्स के अंदर 32 मेल गेमीट बनाने के लिए आपको कितने माइटोटिक मियोटिक डिवीजन और कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए? टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल, इसमें थोड़ा बहुत आपको होशियार रहना पड़ेगा। देख लीजिए क्या है। पहले मैं बोलूंगा एक बात, अगर हम देखेंगे पीएमसी, पोलन मदर सेल, जो एंथर के अंदर होती है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये डिप्लॉयड सेल है। पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड सेल। दिस सेल अंडरगोज मियोसिस, दिस सेल अंडरगोज मियोसिस। पीएमसी, पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल undergoes meiosis and gives rise to 1, 2, 3, 4. It gives rise to 4 microspores. Microspores later mature to pollen grains. चलिए 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, तो सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होंगे, बिकॉज मियोसिस जहां पे इन्वॉल्व होगी तो हैप्लॉइड कंडीशन रेस्टोर हो जाती है वापस। तो डिप्लॉइड कंडीशन से हैप्लॉइड कंडीशन आ गई बिकॉज ऑफ मियोसिस। पीएमसी, पोलन मदर सेल एंथर के अंदर इट अंडरगोस प्रोसेस ऑफ मियोसिस, फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स। तो आगे जाके क्या होता है, आगे जाके मैं एक की बात करूंगा, एक माइक्रोस्पोर की। एक माइक्रोस्पोर जो है हैप्लॉइड है, मैंने यहाँ पे एन लिखा है, चलो इसको ऊपर लिखूंगा मैं एन, फिर से मैं एक की बात करूंगा, फिर इन पे भी, इन सब पे अप्लाई हो जाएगा। यहां पे माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर क्या करेगा, ये करेगा फर्स्ट माइटोसिस। अभी मियोसिस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो खुद प्रोडक्ट मियोसिस का होगा तो वो फिर इसके बाद मियोसिस नहीं कर सकता है। कशिर पठनाथ वनान दुधमुत क्या दज भी ऑलरेडी दुधमुत वो क्या दज। फर्स्ट माइटोसिस ये करेगा, माइटोसिस में एक सेल बनाती है 2 सेल्स, क्रोमोसोम नंबर रहेगा सेम जो है, तो यहां पे इसने डिवीजन किया, इसने बनाए 2 सेल्स,
ये वाली बड़ी सेल जो है दिस कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, ऊपर वाली सेल जो है दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, दिस कॉल्ड जनरेटिव सेल। चलिए अब बनाया टू सेल्ड पोलन। इसके बाद सेकंड माइटोसिस करेगा ये पोलन ग्रेन, सेकंड माइटोसिस, ये वेजिटेटिव सेल को नहीं ये जनरेटिव सेल को हो जाएगी सेकंड माइटोसिस। तो क्या बनेगा, मेल गेमिट 1 मेल गेमिट 2, जनरेटिव सेल ने डिवीजन किया और नीचे ए सच रहेगी वेजिटेटिव सेल, ये है 2 मेल गेमिट्स, नॉन मोटाइल मेल गेमिट्स। अब देखो एक पोलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गेमिट होते हैं, 2। किसके डिवीजन से बन गए, जनरेटिव सेल की डिवीजन से। 1 पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गेमिट्स, या कॉमन सेंस से यहां। तो अब देखिए अगर एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गेमिट है, अगर एक पोलन ग्रेन में, मैं कहां पे लिखूं, ये यहां पे लिखूंगा, अगर थ्रो ये वाला इस्तेमाल करूंगा, अगर 1 पोलन ग्रेन, अगर 1 पोलन ग्रेन के अंदर है कंटेन्स 2 मेल गेमिट्स, अगर एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमिट है, आप देखिए आपको कितने बनाने हैं, टू प्रोड्यूस 32 मेल गेमिट्स। तो एक के अंदर आपको 2 है, को 32 मेल गेमिट कितने में होंगे, 16 में, हाफ, बिकॉज 1 पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गेमिट्स, एक में 2 है, तो आपको 16 में 32 मिलेंगे, तो आपको सीधे 16 पोलन ग्रेन टोटल लगेंगे, कॉमन सेंस। तो आपको लगेंगे, मैं कहां लिखूंगा, इधर लिखूंगा मैं, 16 पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होंगे, 32 मेल गेमिट्स। ये तो यहां तक सही है, लेकिन हमें ये देखना नहीं है, इसे हमें क्लियर हो जाएगा एक चीज, हमें देखना नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन। अब मसला है, हमने 16 पोलन ग्रेन बनाए, 16 पोलन ग्रेन बनाने के लिए आप देखो, पहले देखो एक को हमें क्या क्या लगाया, एक पोलन ग्रेन के लिए हमें लगेगी माइटोसिस 1 माइटोसिस 2, एक पोलन ग्रेन के लिए, एक पोलन ग्रेन के लिए हमें लगेगी माइटोसिस 1 माइटोसिस 2, हमें लगेगी 2 माइटोसिस एक पोलन ग्रेन को बनाने के लिए, 2 माइटोसिस। एक चीज हमने क्लियर किया, हमें लगेंगे 16 पोलन ग्रेन टोटल, 32 मेल गेमिट के लिए हमें लगेंगे 16 पोलन ग्रेन्स। तो एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए हमें लगेंगे 2 माइटोसिस। मियोसिस कितनी लगेगी, एक मियोसिस लगती है 4 को, एक को कितनी लगेगी 1/4, मतलब 0.25 प्लस 1/4 या 1/4 मतलब हो गया 0.25, 0.25 मियोटिक डिवीजन, मियोसिस। मीन्स एक पोलन ग्रेन को बनाने के लिए आपको लगेंगे, एक पोलन ग्रेन में होंगे 2 मेल गेमिट, 1 पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गेमिट। आपको बनाना है 32 मेल गेमिट, 16 पोलन ग्रेन में होंगे 32 मेल गेमिट, सही बात है। एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए आपको क्या क्या लगता है, क्योंकि हमें ढूंढने हैं मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन। एक पोलन ग्रेन को बनाने के लिए हमें लगते हैं 2 माइटोटिक डिवीजन। पहला करता है फर्स्ट माइटोसिस, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस बनाता है जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, सेकंड माइटोसिस होती है, फिर जनरेटिव सेल को 2 मेल गेमिट बनते हैं। एनीवे को 2 माइटोसिस हमें लगेंगे एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए, और 1/4 ऑफ में, बिकॉज 4 पोलन ग्रेन बनते हैं एक मियोसिस से, तो हमें एक के लिए कितने मियोसिस लगेंगे, इसका 1/4 यानी कि 0.25 हमें लगेंगे मियोसिस। अब हमें देखना है यहां वेरी इजीली 16 पोलन ग्रेन जो है, एक पोलन ग्रेन सॉरी क्या है ना, एक पीएमसी एक मियोसिस से बनाते हैं 4। आप मुझे बोलो 16 डिवाइड बाय 4 मीन्स 4 मियोसिस, हमें 4 मियोसिस सीधे लगेंगे, किसके लिए, वी विल रिक्वायर 4 मियोटिक डिवीजन्स टू प्रोड्यूस 16 पोलन ग्रेन्स, बिकॉज 1 से बनेंगे 4, 2 से बनेंगे 8, 3 से बनेंगे 12, 4 से बनेंगे 16। गो 4 मियोटिक डिवीजन्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 16 पोलन ग्रेन। 16 पोलन ग्रेन के लिए हमें क्या लगेंगे, 16 पोलन ग्रेन के लिए हमें लगेंगे 4 मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन कितने लगेंगे, अब देखो एक को हमें लगते हैं 2, एक पोलन ग्रेन के लिए हमें लगते हैं 2, तो 16 के कितने लगेंगे, 16 के लिए लगेंगे 32। हम मतलब हो गया हमें 4 लगेंगे मियोसिस और हमें 32 लगेंगे माइटोसिस। नो हाउ मेनी मियोटिक, मियोटिक पहले आ जाएगा, वो 4 लगेंगे, 4 यहां भी है यहां भी है, ये और ये वाला रिजेक्ट हो गया पहले ही, मियोसिस 4। देखो ना, अगर हम देखेंगे फिर से मैं बोलूंगा, अगर हमें 32 मेल गेमिट चाहिए तो हमें 16 पोलन ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एक पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं 2 मेल गेमिट।
अब अगर आपको 16 पोलन ग्रेन चाहिए तो इसका मतलब हो गया 16 पोलन ग्रेन के लिए आपको लगेंगे 4 पीएमसीज जो करेंगे 4 meiotic division. Means 4 PMCs will undergo 4 meiotic divisions will lead to formation of 16 microspores जो आगे जाके पोलन ग्रेन बनेंगे meiotic divisions के बाद. तो हम बोल सकते हैं जब हमें एक पोलन ग्रेन को लगेंगे 0.25 meiosis तो आपको कितने लगेंगे 16 कहाँ गए 16 पोलन ग्रेन्स को 16 कॉमन सेंस 16 और 0.25 1/4 लगेगा एक को कॉमन सेंस से 4 लगेंगे तो 4 आपको लगेंगे मियोसिस और 16 पोलन ग्रेन एक को लगते हैं कहाँ गया ये एक माइक्रोस्पोर को लगते हैं फर्स्ट एंड सेकंड 2 माइटोटिक डिविजन्स एक पोलन ग्रेन को लगते हैं 2 माइटोटिक डिविजन्स तो 16 को लगेंगे 32 तो 16 को लगेंगे 32 ये 4 and 32 means to produce 32 male gametes the number of meiotic divisions will be 4 and number of mitotic divisions will be 32 क्यों because एक पोलन ग्रेन बनने के लिए 2 mitotic division चाहिए पहला माइटोसिस से बनता है जनरेटिव और वेजिटेटिव सेकंड माइटोसिस से मेल गेमेट बन जाते हैं दिस इज टिपिकल क्वेश्चन ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट अब दूसरे पार्ट में बढ़ जाते हैं ये है इकोलॉजी का पोर्शन इकोलॉजी में देखो पहला क्वेश्चन इसमें 20 क्वेश्चन है फिर वेलफेयर में 10 है 30 क्वेश्चन है टोटल अब ओनली 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सिर्फ 4 स्टेटमेंट नीचे सही है इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया भारत का जो जियोग्राफिकल एरिया है लैंड एरिया है वो दुनिया के मुकाबले में तकरीबन 2.4% ये सही है और इंडिया कंट्रीब्यूट्स 8.1% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी सही बात है इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है दुनिया के अंदर जिसमें ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है भारत इसमें एक देश है तो इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया एंड 8.1% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ट्रू IUCN International Union for Conservation of Nature and Nature Resources nowadays called World Conservation Union तो ये पब्लिश करते एक बुक पब्लिशेस रेड डेटा बुक कंटेन्स लिस्ट ऑफ टैग्स फेसिंग थ्रेट यस IUCN रेड डेटा बुक और IUCN रेड लिस्ट इसमें उन स्पीशीज का उन टैग्सा का नाम होता है ये हर साल पब्लिश करता है IUCN इसमें उन ऑर्गेनिजम्स का उन स्पीशीज का नाम होता है जिनको थ्रेट है दुनिया से खत्म होने का ओके ये भी सही है biodiversity is distributed uniformly across globe no biodiversity is distributed unevenly across the globe इक्वेटर पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है पोल्स की ओर बहुत ज्यादा कम है ये स्टेटमेंट गलत है बायोडाइवर्सिटी नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहीं पे कम जैसे डेजर्ट्स में कम है फॉरेस्ट में ज्यादा है ओके नाइल पर्च एक फिश है इकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल एक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है लेंटेना इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स लग जाते हैं पार्थीनियम इसकी वजह से पोलन एलर्जी हो जाती है और एक्सोटिक स्पीशीज यस दे आर ऑल एलियन स्पीशीज ये सही बात है दीज आर ऑल एलियन और एक्सोटिक स्पीशीज नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एक्स सीटू कंजर्वेशन नो दे आर इन सीटू कंजर्वेशंस दे आर इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज और साइट्स देयर आर 34 हॉटस्पॉट्स इन वर्ल्ड एंड 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कवर इंडिया हाँ भारत में दुनिया के अंदर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है और भारत 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का हिस्सा है ये भी सही है कौन से 4 स्टेटमेंट सही है ABDF पहला ही ABDF ये सही है ABDF ओके नाउ सेकंड विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट डोडो एक बर्ड है मॉरिशस एक कंट्री है मॉरिशस से दुनिया के अंदर ये एक्सटिंक्ट हो गए खत्म हो गए थैलासीन ये ऑस्ट्रेलिया से खत्म कोआगा अफ्रीका से खत्म हो सिटिलर सी काउ ये रशिया से खत्म हुआ और रिसेंट एक्सटिंक्शन सही बात है ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म्स जो है ये सारे दुनिया में आज हमारे पास नहीं है इनके हमारे पास सिर्फ फोटोग्राफ्स मौजूद है ये सच लिविंग नहीं है ये दुनिया से खत्म हो गए रिसेंटली ये दुनिया से खत्म मतलब कुछ 50-60 साल पहले habitat loss and fragmentation overexploitation alien species invasion and co-extinction are included in evil quartet क्या हो गया there are 4 main causes of biodiversity loss जो दुनिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है इसके पीछे 4 मेन कारण है प्राइमरी कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन प्राइमरी काज मेन काज इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉइटेशन दूसरा है एलियन स्पीशीज इन्वर्जन तीसरा है और को एक्सटेंशन चौथा है इन चारों को इकट्ठे हम बोलते हैं नाम एविल क्वार्टेट ओके ये सही बात है
Amazon rainforest, oftenly called as lungs of the planet, produces 20% of total oxygen in the world. Yes, Amazon rainforest जो साउथ अमेरिका के अंदर है, 20% of total oxygen in the world is produced by this very forest. ये भी सही है. Hongul is an Hongul, you know Kashmir state, यहाँ दाशिगाम नेशनल पार्क में है. Hongul is an invasive species in Kashmir. नहीं, invasive नहीं, it's a native species of Kashmir. ये सिर्फ यहाँ पे पाया जाता है. It's not invasive, ये dangerous species नहीं, it's a native, it is endemic to Srinagar National Park, what we called as दाशिगाम National Park. तो इसमें से which statement is incorrect? तो incorrect इसमें D है, इसका ऑप्शन नंबर D आ जाएगा. ऑप्शन नंबर D is incorrect. Third, state the following statements regarding productivity and select the correct combination. Correct इनमें से कौन है? देखो प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन है. कुछ स्टेटमेंट्स. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP मतलब वो टोटल फोटोसिंथेसिस जितने भी प्लांट करता है. Gross primary productivity GPP is a total amount of biomass or energy synthesized by the producers during photosynthesis. सही बात है. Total amount of biomass produced by plants through photosynthesis is called as gross primary productivity. This is true. A considerable amount of GPP is utilized by plants respiration. सही बात है. जब प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस, आधा फूड तो ये खुद इस्तेमाल करेगा रेस्पिरेशन में. सही बात है. तो आधा इसको लगेगा GP का, आधा लगेगा रेस्पिरेशन में. ट्रू. Net primary productivity NPP is the amount of biomass accumulated by autotrophs excluding that used in respiration. Yeah, means total photosynthesis जितने प्लांट ने की, जितना फूड मटेरियल बनाया, that's called GPP, gross primary productivity. इसमें आधा ये खुद करता है रेस्पिरेशन में इस्तेमाल, that is respiratory loss. अब नेट कितना बच गया? नेट बन गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव विल बी इक्वल टू ग्रॉस कितना बन गया मतलब टोटल माइनस रेस्पिरेटरी लॉस. सही बात है. गो net primary productivity is the amount of biomass accumulated by autotrophs excluding that used in respiration. सही बात है. NPP is equal to GPP minus respiratory loss and is available to herbivores. फर्क यकीनन जब herbivore खाएगा, कोई ग्रेजर खाएगा प्लांट को, ये क्या खाता है? GPP तो नहीं खा सकता, ये NPP खाता है. इसका net primary productivity उसने स्टोर किया होगा. सही बात है. The annual net primary productivity of biosphere दुनिया के अंदर टोटल अगर देखेंगे वो 190 बिलियन टन है ड्राई वेट में ऑर्गेनिक मैटर का, और इसमें से ओशंस कंट्रीब्यूट ओनली 55 बिलियन टन्स. ओशंस का सिर्फ कंट्रीब्यूशन है 55 बिलियन टन्स. 115 बिलियन टन्स लैंड पे टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स में बनते हैं. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ जो ओशन होता है वो जैसे इट्स लाइक ए डेजर्ट, बिकॉज वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आर ए लिमिटेड फैक्टर एंड द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, सलाइन कंडीशन इट लिमिट्स प्रोडक्टिविटी. एनीवे, और सनलाइट समंदर के अंदर ज़्यादा मतलब ना डीप नहीं जा सकते. इट ऑल्सो इज वन ऑफ द रीजन दैट प्रोडक्टिविटी इज लिमिटेड इन केस ऑफ ओशंस. तो लैंड पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. 190 बिलियन टन टोटल है दुनिया के अंदर, इसमें से 55 बिलियन टन है ओशंस का, तो बाकी सारा लैंड पे होता है 115 बिलियन टन के करीब. सही बात है. प्राइमरी productivity depends on plant species inhabiting a particular area and the environment factors availability of nutrients. सही बात है. एक एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिविटी बन जाएगी, दूसरी एरिया में कम. जहां न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे वहां लाइट ज्यादा होगी. जहां पे प्लांट का मतलब ना टाइप ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन एरिया, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट. ट्रू. अमंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड इन ट्रॉपिकल रेनफॉल. सही है. दुनिया के अंदर लैंड पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक मैटर की फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो इक्वेटर के आर पार है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा कोरल रीफ्स और एस्चुरीज में. तो दिस इज ट्रू. तो ये सारे सही है. ऑल आर करेक्ट. ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स प्रोडक्टिविटी के बारे में सही है. Question 4. Read the following statement and select the correct combination. Ecosystem हमें क्या देखना है? Correct combination. Ecosystem represents a structure and functional unit of nature and the term was coined by A.G. Tunsley. सही बात है. Ecosystem structure and functional unit biosphere का है और A.G. Tunsley ने term ecosystem थी. True. Ecosystem represents an interaction between living organisms and also with their surrounding physical environment. सही. Means ecosystem is made of biotic and as well as abiotic components. Biotic में आते हैं living organisms और abiotic में आते हैं wind, water, soil, land, light, temperature and all.
Vertical distribution of different species occupying different levels in dense vegetation is stratification. Yes, अगर हम देखेंगे फॉरेस्ट को, नीचे होते हैं ग्रासेस, ऊपर होते थोड़ा थोड़ा तो श्रब्स बस, इसके बाद ऊपर होते टॉल ट्रीज. तो उसको हम देखेंगे, नीचे एक लेयर आ जाएगा, ऊपर एक लेयर, इसके बाद टॉप पे एक और लेयर. दिस इज व्हाट वी कॉल एज stratification. Vertical layering of different species in an ecosystem. It is what we call as stratification. Ecosystem is self-sustaining, self-regulatory unit and can be as big as biosphere, global ecosystem, सही बात, and as small as water drop. Water drop भी एक ecosystem है, छोटा ecosystem, क्योंकि ecosystem में दो किस्म के ये होते हैं components, living and non-living, biotic and abiotic. तो water drop कैसे एक ecosystem है? Water drop small ecosystem है. water में तो water तो खुद है, इसमें जो water drop है, इसमें water जो है ये non-living component है, इसमें dissolved ऑक्सीजन होगा या एयर होगा, वो नॉन लिविंग है इसमें. इसके बाद इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग हो सकते हैं, ये एक इकोसिस्टम की तरह बिहेव करता है. सही बात, ये सारे के सारे स्टेटमेंट इकोसिस्टम के बारे में सही है. ऑल आर करेक्ट. 5. Which among the following statements is are correct? फिर से करेक्ट हमें देखने हैं. चलिए करेक्ट देखेंगे कौन कौन है. इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर. परसों इसमें वो लोटस प्लांट कहता मत. एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 नए प्लांट्स इसमें ऐड हो रहे, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28. द बर्थ रेट में नेटिलिटी, बर्थ रेट विल बी 0.4 ऑफ सेविंग्स पर लोटस प्लांट पर ईयर. देखो एक पॉन्ड के अंदर 20 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर, 20 थे लास्ट काउंट, और रिप्रोडक्शन की मदद से 8 इजाफा हो गया. कोई इजाफा कितना हो गया? इजाफा 8 का हो गया. ओरिजिनल कितने थे हमारे पास? 20 थे. 8/20 ये कितना हो गया? 0.4 लोटस प्लांट्स पर क्या इंडिविजुअल, सॉरी 0.4 इंडिविजुअल्स पर लोटस प्लांट पर ईयर. ये नेटिलिटी है, बिकॉज दीज नेटिलिटी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड पर कैपिटा, मीन्स पर इंडिविजुअल. एनीवे दिस इज ट्रू. The age pyramids generally show age distribution of males and females in a combined diagram. ये हमें आगे देखना है, ये सही बात है. एज pyramid में हम एज देखते हैं ऑर्गेनिजम्स की, एक पॉपुलेशन में किस एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स, ये सही बात है. नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन. नेटिलिटी हो गया बर्थ रेट, यानी कि एडिशन ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू बर्थ. इमिग्रेशन मतलब होगा कहीं और से इंडिविजुअल आ जाएगा, पॉपुलेशन के अंदर घुस जाएगा. इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी. सही बात है, नेटिलिटी और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. एंड मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन डिक्रीज. सही बात है, ये तो सही बात है. नेटिलिटी और इमिग्रेशन में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए. मोर्टेलिटी कोई मरेगा, इमिग्रेशन कोई भाग जाएगा. बदर कुन मुल्कस मंस सुकर हिजरत सुकर जलाए वतन, दैट इज इमिग्रेशन. तो उससे तो इंडिविजुअल कम पड़ेंगी, दोनों की वजह से इन दो से इजाफा हो जाता है. सही बात है. मैक्सिमम ग्रोथ ऑकर्स इन एक्सपोनेंशियल फेज. हाँ, एक्सपोनेंशियल फेज मतलब एक्सेलरेटेड फेज, जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है. ये आगे ग्राफ में आ सकता है. तो ये सही है, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. एमेंसेलिज्म is an association between two species where one species is harmed and other is infected. सही बात. Emencelism is an interaction what we call zero negative interaction. One individual is neither benefited nor harmed, neutral, other is harmed. Zero negative interaction is called emencelism. True, one is harmed मतलब को negative, another is unaffected मतलब को zero. प्लस हो गया बेनिफिट, माइनस हो गया हार्म, और जीरो हो गया न्यूट्रल, ना फायदा ना नुकसान. 50-50. कैटल एग्रेट एक बर्ड है. कैटल एग्रेट इज ए बर्ड एंड ग्रेजिंग कैटल जो चौपाई है शो कमेंसेलिज्म. सही बात है. देखो कैटल एग्रेट एक बर्ड है, और ये ग्रेजिंग कैटल. जब ग्रेजर मतलब एक कैटल मतलब एक काऊ ये ग्रास खाते हैं, जब ये ग्रास खाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ग्रास खाने से जो इंसेक्ट्स घास में छुपे हुए होंगे वो बाहर निकलेंगे, और इसके पीछे पीछे होता है कैटल एग्रेट बर्ड, ये उन इंसेक्ट्स को खा लेता है. इसको फायदा मिल गया. हाँ, उस ग्रेजिंग कैटल को इसकी वजह से कोई फायदा नहीं मिला. पॉजिटिव जीरो इज व्हाट वी कॉल कमेंसेलिज्म. दिस इज ट्रू. ये भी ट्रू था. गॉसेस प्रिंसिपल क्या? गॉसेस प्रिंसिपल. ओके, गॉसेस लॉ competitive exclusion. Gauss's principle of competitive exclusion states that two species can occupy same niche indefinitely for the same limit. No. How come? Two species cannot occupy the same niche. Two species cannot have the same requirements in the same environment. They will not survive for long. Indefinitely, they will not survive. This is wrong. Two species cannot survive when they are sharing the same resource for an infinite number.
नो नो, टाइम के लिए, ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। ओके, कुकू बर्ड मीन्स कोयल, लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो शोज ब्रूड पैरासिम, यकीनन बोलते हैं ना कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, तो ये क्या करते हैं, इट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो, क्रो के नेस्ट में एग्स डालते हैं, फिर क्रो इसको हैच करता है, वहां पे इंक्यूबेशन देता है और इसके बच्चे निकल जाते हैं, जिसका मतलब ब्रूड पैरासाइटिज्म, यानी कि अखना पत्र बेसिस अर्स में ठूल पता में कर से काम में काम, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्रूड पैरासाइटिज्म। तो इसमें देखना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट इसमें है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट इसका आ जाएगा। 7. State the following statements regarding decomposition and choose the correct combination of statements. Decomposition के बारे में कुछ है, ये देख लीजिए। Dead remains of plants and animals, including animal fecal matter, constitute detritus as the raw material for decomposition. सही बात है, जो कुछ मर्दा हुआ होगा, leaf fallen, excreta, this all detritus, इसको decomposition के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Detritivores जैसे earthworm है, break down detritus into smaller particles, a process called fragmentation. सही बात है, earthworm कहते हैं ना pieces, छोटे छोटे pieces detritus के, this is called fragmentation. Decomposition is an oxygen recurring process, yes, it's a aerobic process, इसमें oxygen लगता है, and the rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. लेकिन जो sugar rich होगा उसमें fast decomposition, जो lignin rich होगा उसमें slow होगी, it's true. Rate of decomposition is slow if detritus is rich in lignin and chitin, yes, थोड़ा स्लो होगी, फास्टर व्हेन रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, सही बात है, ट्रू। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन फास्ट होगी, हाँ सही हो गई, फास्ट, वेल लो टेम्परेचर में और एनारोबिक कंडीशंस में कम होगी, सही बात है। Earthworm is known as farmer's friend or nature's plowman as it helps us in breakdown of complex organic matter and losing of soil, true, all are correct, all are correct. Question 8. Choose the incorrect statement. Incorrect, ये ख्याल रखिएगा, एग्जाम में अक्सर होता है इनकरेक्ट को करेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे होता है, तो ये बड़ा ख्याल रखिएगा आप। इनकरेक्ट हमें ढूंढना है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ एक्सेप्ट फॉर सम डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, सही बात है, सन तो अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का है दुनिया के अंदर, तो कुछ सी के अंदर जो वेंट्स होते हैं तो वहां पे कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो करते हैं फिर अपना अंदाज में केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल, वो सन पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, ट्रू, तो ये सही है। आर द टोटल इंसिडेंट लाइट रेडिएशन इज, ओके, सोलर रेडिएशन इज लेस देन 50% इज पार, सही, जो भी इनकमिंग रेडिएशन होती है सन से धरती पे 50% के करीब वो पार होता है, 4% की एक्टिव रेडिएशन। प्लांट्स यूज ओनली 30 to 40%, नो नो नो, प्लांट्स यूज ओनली 2 to 10% ऑफ पार, ये गलत है, ये गलत है, बी ऑप्शन इज रॉन्ग, तो फिलहाल बी ऑप्शन रॉन्ग है, हमें इनकरेक्ट ही देखना है, हम देखेंगे ये भी। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, ट्रू, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है इकोसिस्टम, यानी कि हमेशा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा ग्रीन प्लांट और प्रोड्यूसर्स, फिर इनको हर्बिवोर खाएंगे, फिर कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर, ऐसे जाएगा, कभी उल्टा नहीं हो जाएगा। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलोज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि दोनों लॉज के ऊपर ये बेस्ड है, ट्रू। एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम फॉलोज लिंडमैन्स 10% लॉ, दैट्स ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर एंड रेस्ट इज, दैट्स ट्रू, बिकॉज ओनली 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल इज पास टू अनदर एंड रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट, ये आगे आ जाएगा, ये बाय द वे ये सही है। हर्बिवोर्स मींस प्लांट ईटर्स, जैसे गोट है, हर्बिवोर्स बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, नो, herbivores belong to second trophic level, बल्कि producers belong to first, तो ये गलत आ जाएगा। In an aquatic ecosystem, detritus food chain is the major main conduit for energy flow, बोलते हैं aquatic ecosystem में detritus food chain नहीं, aquatic ecosystem में यहाँ पे होता है grazing food chain, and terrestrial ecosystem में बोलता है grazing food, no, this is wrong, असल में एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है ग्रेजिंग फूड चेन मेजर फ्लो एनर्जी, तो डेट्राइटस फूड चेन इज इन द टेरेस्ट्रियल, ओके। स्पैरो ईटिंग फ्रूट, स्पैरो ने फ्रूट खाया, सीड खाया, as well as insect may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at same time, true, सही बात है। स्पैरो अगर फ्रूट खाएगा या सीड खाएगा मतलब प्लांट को खाया, ये हर्बिवोर बन गया। अगर स्पैरो ने एनिमल खाया मतलब वो इंसेक्ट खाया तो ये तो कार्निवोर बन गया, ये तो डिफरेंट लेवल कर सकता है, occupy in the same ecosystem, true. Amount of biomass at any trophic level of food chain at any time is called standing crop, yes, the amount of biomass present in a trophic level of a food chain, that's called a standing crop, or okay, standing crop biomass जो है। हमें क्या देख रहा था, इनकरेक्ट कौन है, इनकरेक्ट इसमें बी भी है एफ भी है, बी भी है एफ भी है, इनकरेक्ट, ये तो बी एफ,
अच्छा जी भी है ना, बी भी हमने देखा इनकरेक्ट, एफ बी और जी भी, बी एफ जी इसका इनकरेक्ट आ जाएगा, बी एफ एंड जी है ना, बी एफ एंड जी, बी एफ एंड जी ऑनली। तो ये वाले 3 स्टेटमेंट इसके इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट ही देखना था। क्वेश्चन 9, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। हमें देखना है करेक्ट वाला, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक बायोमास, नंबर एंड एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल pyramid. Yes, it's true. Base of pyramid represents the producers or the first trophic level, while the apex represents the tertiary. True. नीचे दिखाते हैं हम, आगे इसकी डायग्राम आ जाएगी। Omnivores and saprotrophs are not given any place in ecological pyramid. Ecological pyramid इन दो का जिक्र नहीं है, न omnivores का न saprotrophs या saprotrophs का जो डेडिकेटेड ऑर्गेनिमेटर पे करते फिर। Pyramid of energy is always upright, सही बात है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। Pyramid of energy क्यों है always upright? Because energy flows 10 following 10% law. ये है। Choose a correct sequence of growth status that will edge pyramids. देख लीजिए, इसमें बेस है ब्रॉड, मतलब गो, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ये है बेस वाले, मिडल वाले है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, और पोस्ट। प्री रिप्रोडक्टिव हो गए बच्चे, रिप्रोडक्टिव हो गए जवान, पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गया बुजुर्ग। तो जिस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होंगे प्री रिप्रोडक्टिव वाले, वक्त के साथ क्या हो जाएगा, वक्त के साथ ये बुजुर्ग जाएंगे, ये जवान उधर जाएंगे बुजुर्गी में, तो ये बच्चे जाएंगे इसमें, तो वक्त के साथ ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। वक्त के साथ ये पॉपुलेशन जो है ये एक्सपेंड हो जाएगी। इट विल शो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, एक्सपैंड pyramid with broad base। तो यहां पे आप देखो, इनका और इनका लगभग सेम नंबर है, जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले सबसे कम वो है, तो इसका वक्त के साथ ज्यादा तब्दील नहीं आ जाएगी, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। सी इसमें सबसे कम ये है, और वो वाले ज्यादा इससे और उससे कम, तो ओवरऑल इसमें वक्त के साथ डिक्लाइन आ जाएगा, डिक्लाइनिंग। तो सिंपल आपको देखना है वक्त के साथ इसका पैटर्न क्या रहेगा। मैंने क्या लिखा, ए में एक्सपेंड, ए का एक्सपेंड, बी का स्टेबल, सी का डिक्लाइन। ट्रू, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन 11, which of the following parameters are used for tiger census in our national parks and tiger? हमारे कंट्री के अंदर हम टाइगर्स का सेंसस कैसे करते हैं, काउंटिंग नहीं करते हम, बल्कि हम इनका पग मार्क देखते हैं, पंजे का निशान, और इनके फीकल पैलेट्स का पैटर्न ये कैसा होता है, दोनों की मदद से हम टाइगर सेंसस कंट्री में करते हैं। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 12, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसके लिए क्या है, dn by dt is equal to rn। dn by dt means change in population density with time, r means biotic potential or intrinsic rate of natural increase, n is the population size or density। तो this is very simple, this simple एक्सपोनेंशियल के लिए। अगर हम देखेंगे उसके लिए लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, उसमें बन जाता है dn by dt is equal to rn k minus n divided by k। k मीन्स कैरिंग कैपेसिटी, तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए बन जाएगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए व्हाट यू अदरवाइज कॉल्ड एज सिग्मॉइड, जे शेप्ड ग्रोथ मॉडल एक्सपोनेंशियल वाला, उसमें भी वही रहेगा। 13, मैच द फॉलोइंग, और करेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए। म्यूचुअलिज्म मीन्स प्लस प्लस इंटरेक्शन, दोनों को फायदा मिलेगा। म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, प्लस प्लस कहाँ है, ये ए का आ जाएगा वी, ए का आ जाएगा वी, ए का आ जाएगा वी, यहाँ पे भी है ए का, ए और सी लग रहे ठीक, तो बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया फिलहाल। एमेंशियलिज्म, एमेंशियलिज्म नेगेटिव जीरो देखा था, बी मीन्स नेगेटिव जीरो, नेगेटिव जीरो का ये वाला। बी का आ जाएगा वी आई, बी का आ जाएगा वी आई, ये बी वी आई, बी वी आई भी तो दोनों में सेम है। सी प्रिडेशन, प्रिडेशन मीन्स प्लस माइनस, प्लस में एक को फायदा दूसरे को, प्लस माइनस यहाँ पे प्रिडेशन का आ सकता है इन दो में से कोई भी, ये सेम है ना। सी में आ सकता है सेकंड भी थर्ड भी, सी में आ सकता है सेकंड, सी में थर्ड रखा है, चलो सी में इसने थर्ड रखा है, ठीक है नो प्रॉब्लम, सी में थर्ड रखा है, ये तो सही बात है, सी में थर्ड है, यहाँ भी, यहाँ सी में फर्स्ट रखा है, यहाँ सी में, ये वाला गलत है, इसका ए आ जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वन।
वी द फॉलो ऑर्गेनिज्म्स आर डिकम्पोज। डिकम्पोजर कौन है? बैक्टीरिया भी डिकम्पोजिशन करते हैं, फंजाई भी करते हैं, फ्लैजिलेट्स भी करते हैं, सारे करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज 10,000 जूल्स, हाउ मच एनर्जी वुड बी ट्रांसपोर्ट टू थर्ड ट्रॉपिक लेवल? देखिए समझाऊंगा आपको मैं, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास प्रोड्यूसर्स है, ये हमारे पास प्रोड्यूसर्स है, मतलब वो ग्रीन प्लांट्स जैसे प्रोड्यूसर्स। इनमें कितनी एनर्जी लिखा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इसमें लिखा है 10,000 जे जूल्स। फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, दिस इज ट्रॉपिक लेवल 1, T1 ट्रॉपिक लेवल 1। अब ट्रॉपिक लेवल 2 में जा रहा है, इसको हर्बीवोर खाएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब को ग्रास ईटर। तो यहां ट्रांसफर हो जाएगी इसका 10%। ये 10,000 है, यहां 1000 जाएगा, यहां 1000 जूल जाएगा, बिकॉज इसमें 90% जो है, 90% ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओनली 10% लॉ, लीड मेन इज 10% प्रिंसिपल, सो ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, 9% इज लॉस्ट एज हीट। इसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल, मैं लिखूंगा यहाँ पे T3 ट्रॉपिक लेवल थर्ड। क्या लिखूंगा? कार्निवोर लिखूंगा, या प्राइमरी कार्निवोर से ओके कार्निवोर लिखूंगा। ये 10% इसका मीन्स 100 जूल्स, इसका 10%, इसका 10% यहां जाएगा। अब इसका 10% यहां जाएगा, 1000 का ये 100 जाएगा यहां। तो हमें क्या देख रहा है? इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी 10,000 जूल है प्राइमरी प्रोड्यूसर में, सही। हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसपोर्ट टू थर्ड ट्रॉपिक लेवल? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड में तो 100 जूल्स पहुंचेंगे, 100 जूल्स ये वाला। आई होप दिस क्लियर है। आगे एज पर रॉबर्ट में, ये साइंटिस्ट है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्टिंग इन वर्ल्ड, जो दुनिया के अंदर आज तक स्पीशीज जो डिस्कवर हुए, दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन। दीज आर द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट हैव बीन ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। लेकिन रॉबर्ट मे के हिसाब से दुनिया के अंदर जो स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 70 मिलियन है। 70 मिलियन है। 1 मिलियन कितना हो गया? 10 लाख। 1 मिलियन का एक और नाम है 10 लाख, तो 70 मिलियन का हो गए ना 70 लाख। आप बोलो 70 मिलियन या 70 लाख, इज वन एंड द सेम थिंग। तो 7 मिलियन 70 लाख वन एंड द सेम थिंग, मीन बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। एक ही बात है ना, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, सिंपल। चलिए क्वेश्चन 17, दिस इज मैच द फॉलोइंग, मैच कीजिए। सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड ग्रूव्स फॉरेस्ट्स के वो एरिया होते हैं जो कुछ कल्चर्स में रखा जाता है असाइड फ्रॉम द मेनलैंड, तो इसको प्रोटेक्शन की जाती है कुछ कल्चर्स में। ये इन सिटू कंजर्वेशन में आ जाएगा, ए आ जाएगा इसमें, मतलब ए आ जाएगा IV, ये खत्म हो गया, ये तो सही है। अब टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर एक एक्सिटिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है। टिश्यू कल्चर में हम प्लांट एक्सिटिव कंजर्वेशन, ये वाला। बी का आ जाएगा थर्ड, बी का आ जाएगा थर्ड, हमें इन 3 में से देखना है। बी का थर्ड, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, सी वाला। फिर नाइल पर्च एक इन्वेजिव स्पीशीज है, एक्सोटिक स्पीशीज है, तो कहाँ पे? लेक विक्टोरिया में इसका ये किया गया था, इसका इस्तेमाल। नाइल पर्च लेक विक्टोरिया के साथ रिलेटेड है। सी सेकंड, सी का आ जाएगा सेकंड, सी का आ जाएगा सेकंड, ये दोनों में सही है भी। डी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायो हॉटस्पॉट्स भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका के साथ इसका मिलन है, तो डी का आ जाएगा वी, डी का आ जाएगा वी इन दोनों में, डी वी। ये ऑप्शन नंबर बी खुद ब खुद क्लियर, दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन सी मीटिंग इसके साथ रिलेटेड है जहां पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात हुई? अर्थ समिट, आल्सो कॉल्ड रियो समिट, यू नो, रियो समिट, रियो समिट। इसको हम कभी कभार बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट वाज ए मीटिंग हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992, तो इट्स एन इंटरनेशनल मीटिंग, इट वाज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो in 1992 for taking the steps towards conservation of biodiversity. It's true. Earth Summit is a meeting related to biodiversity conservation. True. ये रियो में हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2002 में ये मीटिंग हो गई जोहान्सबर्ग सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी मीटिंग है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड समिट से मीटिंग से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट्स ए मीटिंग इंडीड, इट्स इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज हेल्ड इन मॉन्ट्रियल सिटी ऑफ कनाडा, ये कनाडा में हुई मीटिंग।
1987 में ये मीटिंग हो गई। तो इसमें कुछ स्टेप्स लिए गए, हाउ टू लिमिट द यूज ऑफ नॉट ओजोन, हाउ टू लिमिट द यूज ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो करते हैं ओजोन डिप्लीशन एक्चुअली। तो ये मीटिंग बायोडाइवर्सिटी के साथ रिलेटेड, ये ओजोन के साथ रिलेटेड है। तो पहली और सेकंड मीटिंग बायोडाइवर्सिटी के साथ रिलेटेड है, बोथ एंड बी। क्वेश्चन 19, इकोलॉजिकल निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का निश हो गया, ऑर्गेनिज्म कौन से कंडीशंस टॉलरेट करता है, सेट ऑफ कंडीशंस दैट एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू tolerate, and the resources it utilizes, whether it is a producer, herbivore, carnivore or what level decomposer, और इसका फंक्शनल रोल एक इकोसिस्टम के अंदर। सही बात है, ये सारे चीजें ऑर्गेनिज्म का निश ही डिफाइन करते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। देखो, एनग्रीव इज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, बैटसन इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, J.C. Bose is father of Indian plant physiology। तो रामदेव मिश्रा इज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये इकोलॉजी का पोर्शन मुकम्मल। अब हमें लास्ट 10 क्वेश्चन है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के, 10 क्वेश्चन ओनली। नाउ क्वेश्चन 1, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। Bacillus thuringiensis एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियम है। Bacillus thuringiensis BT strains have been used for designing novel bioinsecticidal plants। हाँ, Bacillus thuringiensis एक बैक्टीरिया है जिसके पास एक जीन है, दैट्स कॉल्ड BT टॉक्सिन और क्राइजीन। ये बनाता है BT प्रोटीन, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, तो या क्राई प्रोटीन, जिसकी मदद से इंसेक्ट्स जब ये खाते हैं इस टॉक्सिन को तो उनके गट के अंदर होल्स हो जाते हैं और इंसेक्ट मर जाता है। मतलब को ये इंसेक्ट को मारने का एक तरीका बनाता है, एक टॉक्सिन बनाता है जिसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। तो ये एक बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट बनाने में इस्तेमाल, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉटन में क्या कैसे बनाया गया, बीटी ब्रिंजल, बीटी क्रॉपस, बेसिलस thuringiensis क्रॉपस, वही बेसिलस thuringiensis का बीटी टॉक्सिन जीन इनकॉर्पोरेट किया गया प्लांट में। जिस प्लांट के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन होगा बेसिलस thuringiensis का, उस प्लांट को हम बोलेंगे ये बीटी क्रॉप है, दैट्स सिंपल। तो इससे हम नॉवल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट जो खुद ब खुद इंसेक्ट को खत्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ट्रू। राइजोबियम एक बैक्टीरियम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर व्हिच इंप्रूव्स फास्फोरस अपटेक। नो नो नो, इट इंप्रूव्स नाइट्रोजन अपटेक, दिस इज रॉन्ग। बिग होल्स इन स्विच चीज एक किस्म की चामन है चीज, स्विच चीज आर मेड बाय बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही बात है, एक बैक्टीरियम है उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, उसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस स्विच चीज, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इवॉल्व होता है इट मेक्स होल्स इन द चीज, और वो होल्स एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बन जाते हैं। ये सही है। Proteases and pectinases. Protease means protein degrading enzyme. Pectinase means pectin dissolving enzyme, जो सेल वॉल होता है पेक्टिन का बना हुआ प्लांट्स में। इन दोनों एंजाइम्स का इस्तेमाल आर यूज्ड टू क्लेरिफाई मार्केटेड बोटलेड जूस। देखो, अगर आप घर में बनाएंगे ना जूस, मैंगो जूस, वो बहुत ज्यादा होता है, क्या मतलब मोटचो आसान से, उसमें थोड़ा ये होता है मोचर आसान ज्यादा, लेकिन आप मार्केट में देखेंगे वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है। क्यों? वो एंजाइम्स का इस्तेमाल करते प्रोटेसिस और पेक्टिनेसिस का, ताकि बोटलेड जूस जो है इसको क्लियर बनाया जाए मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए। ट्रू, सही बात है। During growth, labs means lactic acid bacteria produce acids that coagulate and partially digest the milk protein। हाँ, जब lactic acid bacteria lactobacillus हम जम दूध लगाते हैं करे दूध में, तो वहाँ पे क्या होता है, वो करता है वहाँ पे coagulation मिल्क प्रोटीन की, केजिन, तो उस coagulation की वजह से डाइजेस्ट हो जाए, फिर partially डाइजेस्ट होता है मिल्क प्रोटीन और मिल्क तब्दील होता है कर्ड में। ट्रू। The puffed up appearance of dough is due to the production of methane gas। नहीं, जब आप इस्तेमाल करते हो यीस्ट इस्तेमाल करते हैं ब्रेड मेकिंग में, वहां पे वो ब्रेड थोड़ा बहुत बनाता है ना, ये पफड अप अपीयरेंस, मतलब वो थोड़ा बड़ा हुनान थोड़ा वहां पे होता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पे लिखा मीथेन, दिस इज रॉन्ग। A good producer of citric acid, aspergillus, aspergillus एक फंगस है, तो ये सिट्रिक एसिड बनाता है। ट्रू। To synthesize the products like beverages, antibiotics, extra microbes are grown in large vessels called fermenters। सही बात है। देखो, इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल मतलब ना बनाने में, तो उस बड़े बड़े वेसल्स, बड़े बड़े टैंक्स में जो हम ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन बड़े टैंक्स का नाम है फर्मेंटर्स। ये भी सही है। तो हमें क्या देखना था, करेक्ट स्टेटमेंट्स। देखो, A, C, D,
ACDEGH, ACDEGH. D option is correct. ACDEGH. Okay. 2. Study the following statements and select the correct combination. Waste water generated in cities, towns containing human excreta and pathogenic microbes is known as sewage. हाँ, जो भी हमारे घरों के अंदर से ये पानी निकलता है, वेस्ट वाटर जो जाता है नदियों में, नालियों में, whatever, तो वो सारा सीवेज कहलाता है. Waste water generated in the society is what we call as sewage. True. हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है. सस्पेंडेड सॉलिड्स आर रिमूव्ड इन प्राइमरी ट्रीटमेंट विच इन्वॉल्व्स फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. इससे देखो जो ये सीवेज जमा होता है सिटीज में, टाउनों में, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, इसको डायरेक्टली पानी में डिस्पोज नहीं किया जाता है. इसको पहले ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में. वहां पे किया जाता है दो प्रोसेसेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट. पहले ट्रीटमेंट में इसको सेडिमेंटेशन की जाती है, जो भी भारी भारी चीजें हैं वो सेटल हो जाते हैं, और जो ऊपर से चीजें उनको फिल्ट्रेशन की जाती है. फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की मदद से सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में. ट्रू. डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज इज प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया इन सेकेंडरी. सही बात है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का और एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है इस सीवेज को ट्रीट करने के लिए, ताकि इसको लेस पोल्यूटिंग बनाया जाए. सही बात है. बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स द इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर. प्रेजेंट इन वाटर इज ग्रेटर द बीओडी ऑफ वाटर मोर विल बी इट इज पोल्यूटिंग पोटेंशियल. सही. कितना ऑक्सीजन लगेगा बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने के लिए, जो एक्सक्रीटा होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा सीवेज के अंदर, उसको हम बोलते हैं बीओडी. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज इज कॉल्ड बीओडी. जितना ज्यादा बीओडी होगा, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, मतलब उतना उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा. सही. ग्रेटर द बीओडी मोर विल बी द पोल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ सीवेज. ट्रू. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF जिसको हम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF. कभी कभार मत आएगा. MOEF का मतलब क्या होता है? द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान. गंगा और यमुना ये दो बड़े रिवर्स है हमारे कंट्री में, टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम सीवेज पोल्यूशन. सही बात है. क्योंकि डायरेक्टली बहुत सारे सिटीज में सीधे लगाया जाता है वेस्ट वाटर नदियों, नालों में, दरियाओं में. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. इन्होंने इनिशिएट किया गंगा एक्शन प्लान. गंगा के दोनों साइड्स में, गंगा के किनारे बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. यमुना एक्शन प्लान, यमुना के दोनों किनारों में बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ताकि इन वाटर बॉडीज को बचाया जाए फ्रॉम द सीवेज पोल्यूशन. सारे के सारे स्टेटमेंट सही, ऑल आर करेक्ट. 3. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट हमें देखना है कौन है. द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया. इसका साइंटिफिक नेम है. ये सही बात है. ब्रेड मेकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं बेकर्स यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया. ट्रू. द रोकफोर्ट चीज इज, जिस तरह स्विस चीज है, इसी तरह रोकफोर्ट चीज भी एक चीज का एक टाइप है, ब्रांड है. रोकफोर्ट चीज इज रैपेंड बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंगस ऑन देम विच गिव्स देम ए पर्टिकुलर फ्लेवर. हाँ, फंगस का इस्तेमाल करते हैं हम रोकफोर्ट चीज बनाने में, और स्विस चीज बनाने में हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं. सही बात है. Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewers is used for fermenting malted cereals and fruit juice to produce ethanol. सही बात है. देखो Saccharomyces cerevisiae यानी कि यीस्ट जिसको हम बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट, ये ब्रेड मेकिंग में भी इस्तेमाल होता है और ब्रीविंग इंडस्ट्री में एथेनॉल या अल्कोहल प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है. यही चीज, ये डिपेंड करता है आप सबस्ट्रेट कौन देगा, आपका एंड प्रोडक्ट वही मिलेगा. ट्रू. वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन. इनमें होता है लो concentration of alcohol, wine और beer में. While whiskey, brandy, rum are produced by distillation of the fermented broth. इनमें high alcohol concentration. True. सही statement है. Lipases are used in detergent formulations and help in removing oily stains from laundry. देखो कभी कभार आप तेल लगाते हो सर में, अगर तेल गिर गया किसी सफेद इस पे कपड़े पे, तो क्योंकि तेल जो होता है ऑयल होता है, मीन्स ऑयली स्टेन अगर लग गया, इसको नॉर्मल डिटर्जेंट रिमूव नहीं करेगा ये ऑयली स्टेन. इसके लिए वो डिटर्जेंट इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें लाइपेस लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा. जब वो आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करेंगे, वो लिपिड को, मीन्स इस फैट को, इस ऑयल को हटाएगा, वहां से स्टेन निकालेगा. ट्रू. लाइपेस इस्तेमाल किए जाते हैं रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री. स्ट्रिप्टोकाइनेस एक एंजाइम है produced by bacterium Streptococcus, modified by genetic engineering, is used as a clot buster for removing the clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction. It's INFRA.
मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन मींस हार्ट अटैक, लीडिंग टू हार्ट अटैक। ओके, तो सिट्रोकाइनेस एक एंजाइम है जो एक एंजाइम बनाता है, कौन? एक बैक्टीरिया सिट्रोकाइनेस। इसको मॉडिफाई किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ये इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी के, इस इंसान के ब्लड वेसल में क्लॉट बन गया है तो सिट्रोकाइनेस उसको दिया जाता है, वो इस क्लॉट को खत्म करता है। इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, सो द ब्लड क्लॉट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम हार्ट अटैक। ट्रू, सही बात है। साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। हाँ, साइक्लोस्पोरिन ए आगे इसमें बात करेंगे। साइक्लोस्पोरिन ए एक बायोएक्टिव कंपाउंड है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इस्तेमाल है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा बहुत लॉवर डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम। नो 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 नो, साइक्लोस्पोरिन ए इज इंडीड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इट इज यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, नॉट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं बनाता है। इसका जी आ जाएगा रॉन्ग। हमें क्या देखा? इनकरेक्ट। ओनली जी इज रॉन्ग, जी इज ओनली रॉन्ग। चलिए फोर्थ, अमंग द फॉलोइंग चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। इसमें से देखना है करेक्ट कौन है। करेक्ट देखेंगे, द बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स। बीटल एक इंसेक्ट है, इसमें क्या है, इस पे ऊपर होते बॉडी पे रेड और ब्लैक कलर के मार्किंग्स, जिसको हम नाम देते हैं लेडी बर्ड। ये बर्ड नहीं है बाय द वे, इंसेक्ट है, लेडी बर्ड इसका कॉमन नाम है। ड्रैगन फ्लाइज और क्या किया जाता है, आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एफिड्स। यस, लेडी बर्ड इज यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज। सही बात है, ये सही है, हमें करते देखना है। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज द बैसिलस thuringiensis। मैंने आपको बोला था बैसिलस thuringiensis कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स। ट्रू, बिकॉज ये बीटी टॉक्सिन बनाता है, क्राइप्रोटीन बनाता है। ट्राइकोडर्मा इज ए बैक्टीरियम। ट्राइकोडर्मा इज डेवलप्ड बाय यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। ट्राइकोडर्मा जो है एक नहीं, ट्राइकोडर्मा कहाँ बैक्टीरिया है? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, इट इज ए फंगस। ये रॉन्ग है, ये फंगस है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्लोवायरसेस यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स इन द जीनस और इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। सही बात है, जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्लोवायरस जो बायो कंट्रोल में हम इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल दीज पेस्ट्स इन द एग्रीकल्चर, वो न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस जीनस में आते हैं। ये सही बात है। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइक्रोराइजा। ग्लोमस एक फंगस है, ये माइक्रोराइजा फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बनाता है। ये सही है। हमें क्या देखना है? विद द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कौन कौन है? देखो, जिसमें सी है वो गलत है, सी है ना इसमें गलत, तो सी जहां जहां ऑप्शन है उसको हटाओ। ये भी नहीं हो सकता, इसमें सी है। ये भी नहीं हो सकता, इसमें सी है। ये भी है, इसमें सी है। कॉमन सेंस, जिस सी में सी थी ना, ऑटोमेटिकली ए बी डी ई आ जाएगा, ए बी डी ई आ जाएगा। दिस इज इजी मेथड टू पिक आउट द ऑड वन। फिफ्थ वन, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट। करेक्ट हमें देखना है कौन है। यहां से बायोएक्टिव सब्सटेंस है, यहां से इसका रोल है। देखो, स्टेटिनस जो है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट से ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोएक्टिव कंपाउंड, उसका नाम है स्टेटिन। ये बनाता है एक यीस्ट, एक फंगस, उसका नाम है मोनेस्कस पुरपुरियस। बाय द वे, स्टेटिनस रिमूव लवरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ए का आ जाएगा थर्ड, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवर करता है। ए का आ जाएगा थर्ड, ए का आ जाएगा, इधर ऑटोमेटिकली पाना है। ये भी नहीं आ जाए, ये भी नहीं आ जाए, एक आ जाएगा थर्ड, ये ऑटोमेटिकली आ गया, इसमें ए में थर्ड है, ए वाला थर्ड। बी का डिफरेंटली आ जाएगा 4, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट अभी बोला था, ये बनाता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, एक फंगस है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट रिमूव्स ब्लड स्टेन्स। चलिए, लाइपेस ये लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता है, अभी बोला था ना, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स। सही बात है, सही बात है। Sixth, select match the following bacteria and commercially products. Correct, देखो इनमें से कौन है? Aspergillus niger एक फंगस है, by the way. Aspergillus niger क्या है? एक फंगस, फंज है, एक फंगस है। ये सिट्रिक एसिड बनाता है, सिट्रिक एसिड। ये एक आ जाएगा 4, ए का 4 को ये और ये रिजेक्ट हो गए, इन दो में से कोई आ सकता है। एस्टोबैक्टर एस्ट शुद्ध बारह, एस्टोबैक्टर को एस्टिक एसिड शुद्ध, एस्टोबैक्टर एस्टिक एसिड शुद्ध देखिए। बी का थर्ड आ जाएगा, बी का थर्ड, ये इधर पाना है, बी का थर्ड आ जाएगा। सी का आ जाएगा सेकंड, सी का आ जाएगा बोटेलिकम गोना की ये ब्यूटारिक एसिड इति लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड ना भाई ऑटोमेटिक सी इसका आ जाएगा सही।
8. The technology of biogas production in India has been developed by the efforts. देखो बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस में मेन गैस जो होता है, खास गैस, वो है मीथेन. हालांकि इसके अलावा हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है. लेकिन भारत के अंदर जो है ये बायोगैस टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन की डेवलप हो गई, ये किस एजेंसी की वजह से डेवलप होगी भारत के अंदर? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC. ये सही है, ये सही है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ना नहीं इसके साथ मेडिकल रिसर्च अलग है, मेडिकल साइंस के साथ ये नहीं है. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRI, सही बात है. ए ने भी और सी ने भी, बोथ ए एंड सी, दोनों के एफर्ट्स की वजह से हमारे भारत के अंदर क्या बन गए? बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उरूज पे पहुंच गई. 9th क्वेश्चन, बायोगैस, अभी मैंने बोला बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन, गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं. चलिए, मीथेन प्रीडोमिनेंटली, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, इसमें H2S भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है. तो ऑल ऑफ दीज बायोगैस में सारे गैसेस पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है डोमिनेंस में मीथेन. लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे निकाला गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. पेनिसिलियम notatum. Penicillium notatum is a fungus from which world's first antibiotic, wonder drug, what we call, that's called penicillin, was obtained. Penicillin is an antibiotic that was first obtained from Penicillium notatum. इसके बाद ये बाकी एंटीबायोटिक्स आ गए. ये क्या है? फंगस है. तो ये फंगस है, मीन्स ये फंगस है. Penicillium notatum ये फंगस है. That's all. These are the questions. Thank you.